Namaste. I thank all of you for coming today for this book launch event. And I have a special list of people also whom I would like to additionally thank. Why would a doctor like me get into writing a book like this, right? That's one basic question which comes up. So it's a long story in the sense that it actually started in somewhere in the beginning of 2020 where I was at a social function and Virendraji was also there at that same function. And I just was following up these cases because, I had no idea about them and the Abulkar hearings and all had not begun also, in fact. So I knew he is the advocate representing the accused. So I took kind of a frank step and asked him what exactly is this case and you're representing some of the accused. Can you tell me something about it? So he had a hearty laugh and he told me that uh, every couple of years they catch two people and they say that these two are the killers. So I said, how can that be possible? He said, you go look it up yourself. So that got me very curious, and I started looking it up for myself. And then, when I found it was actually true that three different pairs of people had been named as the killers at three different points in time, and out of them, two pairs of them had actually been separately charge sheeted in different charge sheets as the killers. So I found it extremely strange, and that took me down a very, very, very deep rabbit hole. And eventually, I ended up realizing that there's way too much material in this just to write a couple of social media posts or articles and all. And this must come out in the form of a book. Of course, the book was mainly compiled during the lockdown period, but a lot of editing and proofreading and addition of facts and verifications kept going on for the next year. A lot of hard work went into it because the charge sheet itself was 10,000 pages. So imagine reading 10,000 pages of a police document. I mean, it's really a boring job. So there were also, when I realized that when I got into it, there were so many other judgments which had come out, which were linked with these cases in various ways, which again became part of my study material and which got included in the book. There were I must have read at least a few thousand newspaper articles, and I found a hell lot of fake articles. When you actually go back and look at the facts, and you'll understand why I'm saying that. There were a lot of additional documents, and you'll see the book references itself runs into 830, and I didn't want to make it any longer than that. So let's get to the point. Who were these four rationalists whose murder we are writing about in the book? So basically, the first person is Dr. Narendra Dabholkar, who was MBBS doctor actually, and he was initially practicing in Satara, and later on he got involved in this anti-superstition progressive movement in Maharashtra state, where they tried to dispel notions of mainly religious superstitions in the society. And he eventually got into it full time and quit his medical profession and started his own organization, which you call as Andhashraddha Nirmulan Samiti Maharashtra, or ANIS or MANS. Now, he was a well connected guy and he was a very good organizer. His organization grew very well and he had a lot of political backing also from more than one front. And he eventually got into the policy making side and presented an anti superstition bill, which he drafted on behalf of the government of Maharashtra at that time. Imagine the legislative powers being outsourced to an NGO. It's happening a lot, and it's not only this case, it's happened in other cases also. I have again noted that in the book. And that was pretty draconian and opposed staunchly by Hindu organizations. Most of us may not even know what it entailed, and it was pretty scary. Something as simple as making a choti could land you violating the act, and just to say a few words, and a lot of other things. So that act was extremely opposed by people. He was murdered in 2013. His organization had kind of some links with leftists, of course.
because there were Communist Party workers who were campaigning for him, for supporting his activities also. Some of his workers were arrested for Naxalite activities also. And in fact, there was a newspaper article published on this, which said that the Maharashtra State Intelligence Bureau report has said that the organization has links with Naxals. So that I would say that that's kind of a darker side also, which I have covered. I have also covered a lot of the positives, which also need to be highlighted in this. And he was shot dead by two people who followed him in the morning on a motorcycle in about 2013 in Pune. That's where he used to stay also. So he was the first one. The second one was Comrade Govind Pansare, who was no rationalist, in fact. He was just a mainstream politician of the Communist Party, CPIM. And he used to lead agitations like most politicians lead agitations. He was involved in several of them, pretty dangerous ones at the time. And he had also authored a book. He was also a secular Vadi, so he wrote a book called Who Was Shivaji and tried to portray Shivaji Maharaj as a secular leader and not founder of Hindu Swaraj. So, of course, that book was opposed, but it sold well. And he was shot somewhere in the beginning of 2015 in Kolhapur while he was out for breakfast with his wife. He was returning home and he was gunned down by two people on a motorcycle. The reason why these cases became controversial is, we'll come to that also. Then M.M. Kalburgi, he was mainly an academic from Karnataka, and his specialty was Lingayat Vachanas. So he used to interpret Lingayat Vachanas and give commentary on them. And he had been very awarded by the governments also of the time. After being awarded by governments, that wasn't good enough, so he was given the job of actually translating and editing the vachanas for publications by official government. And then that wasn't enough, he was appointed as vice chancellor of the university also. But the thing is that his writings were not accepted by mainstream Lingayats. He strongly believed that Lingayats are not Hindus. Most of the Lingayat community staunchly opposed this. He had written a lot of very objectionable things about Basaveshwara, because of which he had been given death threats repeatedly, and he was under police protection. In fact, the threats were so severe. Eventually, he surrendered his police protection, and a short while later, he was murdered. Now, Gauri Lankesh became a very famous figure, as most of you must be knowing, only after her death, right? Because she was a leftist journalist. She was basically known for anti-Hindutva, whatever that means, right? It basically, I don't see any difference between Hindutva and Hinduism as such. Again, she was also associated with this Lingayat movement which Kalburgi was trying to pick. But the thing about her is she had her own publication, Gauri Lankesh Patrike. The thing about this is that she had extremely deep and well-known links with Naxalites. And some of her closest friends were die-hard Naxals. And in fact, the links were so prominent that she was actually appointed by the Siddaramaiah government to negotiate surrender of Naxals, because she had so much of deep contact with them. And she was murdered while entering her home, very professional hijab, which was actually captured on the CCTV camera in 2017. So the narrative started right from the first case itself, from Dr. Dabholkar's case, where he said that people are being killed for their thoughts. And then when Pansare was killed, they said, see, another rationalist has been killed for his thoughts. Then when Kalburgi was killed, the narrative again went, see, all three of them were killed for their thoughts. And when this journalist was killed, see, all four rationalists are killed for their thoughts. Now, I don't know how a mainstream politician becomes a rationalist. I don't know how a leftist journalist who was convicted for defamation becomes a rationalist. But this is the narrative that has been spun because there were certain similarities between all the four murders. Mainly that they were all anti-Hindutva ideology, right? Basically leftist ideology. The modus operandi was similar, where two people come on a motorcycle and gun them down and run away. And the weapons used were kind of similar weapons of the similar caliber weapons, you can say, right? But that's where it all ends. Now,
This all went out of control because the entire case was of a conspiracy linking these four murders. They were murdered undoubtedly. Should they have been murdered? No, obviously not. But was there a conspiracy behind their murder for which all the four had to be shown to be linked? Yeah, because you are running a narrative. But the problem with narratives is that they need to be supported by facts. And if your facts are not in place, your narrative will just keep drifting and shifting, right? And here you have a presupposition where when a person is killed, within an hour or two, the heads of the state are giving comments like they are killed for their ideology, right? Nobody lives in a vacuum. Everybody has multiple contacts. Everybody has multiple areas of conflict. Some have with their family, some have with their profession, some have business rivalries. But if you look at only one aspect of their life and you try to link everything which is not really linked, you end up deeper and deeper into trouble. Which is basically what happened to these investigations, and which is why I call it a diary of a ruined investigation, because the investigation has been ruined by the political aspect of it. It's been ruined because there was an unnecessary attempt at manufacturing a conspiracy where there was none. It's ruined because witnesses were tortured into giving statements which they didn't want to give, which is, of course, how our police still works in the country. And this is not the first time, it's not going to be the last time. When evidence wasn't there, the evidence had to be manufactured. And when it couldn't be manufactured, they had to dredge the sea to take it out. Right? I'm going to tell you more about that also. And first time in my life, I have seen that every charge sheet names a different accused and a different supervisor of the accused. So I don't know, charge sheet means what? Basically, what does a charge sheet mean? Charge sheet means pehle to when the crime is committed, an FIR is lodged, which is a first information report which is given by the police, right? And then they start the investigation. That is basically the complaint which is received. Then they start investigating. Once the investigation is done, investigation is complete. Now you have enough material to go to court. So then you file a charge sheet, which has to be produced in court, right? If any charge sheet means investigation is complete. Is that clear? So if the investigation is complete, then the government can say that, okay, the investigating authority can say, okay, we are still looking for maybe some additional clues which may be there, right? We seek permission to produce it at a later date, and we'll file some supplementary if needed, right? So that is supplementary. That is supplement to the main chapter that you're writing, right? Here the supplement is replacing the main chapter, right? And worst out of all, you keep leaking little tidbits to media in the name of unnamed sources. We all know where unnamed sources come from, right? Posteriors of people sometimes. And unnamed sources is, I would say, a major hand in building a narrative. A lot of what is published in the papers is actually just rubbish. इतना बेबुनियाद चीजें छपी हैं इसमें कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते इसके बारे में. अब मैं बता रहा हूँ आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ. ये आप फोटोज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ना 2013 के फोटो है, जो इमीडिएटली क्राइम के बाद में जो आई विटनेसेस थे थोड़े बहुत दाभोलकर मर्डर में, उन्होंने उनके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ये दोनों फोटोज बने थे. और 2016 का जो दिख रहा है आपको, वो 2016 के भी वही लोग हैं जिन्होंने दाभोलकर का मर्डर किया, जिनका वो स्केच है वो सीबीआई ने बनाया है सेम विटनेसेस के बयान पे. They look similar. Description by the same witnesses to two different set of officers mean two different photographs. उसको देख के जवाहरलाल नेहरू को तो ढूंढने नहीं गए. Now you see this chart. Okay. Now, first pair of people you see up there in the names, Manish Nagori, Vikas Khandelwal. These two people, the weapon was actually recovered from them and tested by forensics and confirmed to be the murder weapon, matching with the bullets found in Dabholkar's body. They are never charged. They are arrested and then let away. Then investigation goes nowhere. 2016 they say, we have identified two people. They were only the murderers, Sarang Apolkar, Vinay Pawar, and we charge sheeting them also. They charge sheeted them. Why 2016? Because at this time they were charge sheeting the same people in the Panchare case also. Now the fun part is that these two guys have been missing for 6 years. They have been missing. So you file report on people who are already missing, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना किसी को.
आपको मालूम नहीं है किसने किया है, तो आप ऐसे लोगों का नाम ले लो जो आपको मालूम है ऑलरेडी मिसिंग है काफी साल से, और हम तो ढूंढ चुके हैं वो नहीं मिलने वाले. And in 2018, another set of people in the supplementary charge sheet are named as the killers. कितनी बार नाम बदले हुए हैं आप देख लीजिए, 5 बार नाम बदले हुए हैं किलर्स के, और उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उसके भी नाम कितनी बार बदले हुए हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज चार्ज शीट. 2 अलग चार्ज शीट में 2 अलग पेयर्स के नाम हैं. गोविंद बंसारे मर्डर केस में भी वही हुआ. 2016 में उन्होंने नेम किया एक समीर गायकवाड़ को, जो सनातन संस्था से जुड़ा हुआ पर्सन है, और बहुत सारे आर्टिकल्स छपे उनके ऊपर saying that 50 mobile phones are recovered from him, and he was in links with so many people, and he had boasted about the murder to someone, and he was charge sheeted in fact for the murder. What happens the next year? After the charge sheet is filed, the minister stands up and says, we arrested him only on basis of suspicion, and actually we don't have any evidence against him at all. And not only that, he was in Thane when the murder was happening in Kolhapur. Charge sheeted person hai ye. And then they name the same 2 people, Sarang Akolkar and Vinay Pawar, who are already missing. यानी आपको यहाँ पर भी ढूंढना नहीं है किसी को, जो लगे हैं, जो मालूम है गए हैं, उनको आपने नेम कर दिया और मैटर को क्लोज किया. And then 2019, another charge sheet is filed which names another person. And the relatives by then had got so frustrated that they had already asked for change of investigation officer. And later on, after years of trusting the Kolhapur police, they eventually said that you please give it to some other agency, which has happened now, this year. And the trial is not going anywhere. The poor guys are sitting in jail. Gauri Lankesh murder case. She was shot and the video is captured on CCTV. You can see that video on YouTube. YouTube पे उसका video है murder का. उसके घर के CCTV में capture हुआ. She was opening the door. One guy came, pushed her in, shot her and ran away. Within seconds it was done. 3-4 seconds में हो गया murder उसका. And very professional hit job. Now the thing is that they initially from people around, there was nobody over there, first of all. वो अंधेरे रास्ते में उसका जो that day the street lights were out and that road was in dark and there was literally nobody in her house. वो time पर they searched around in some areas and they found some CCTV footages of some areas around and they produced those 3 sketches of 3 people whom they said कि ये शायद हो सकते हैं. Now it is not even कि ये लोग हैं जिनको आई विटनेसेस ने देख के बनाया, it is ये शायद हो सकते हैं वाले लोग. Okay. And after 2 years, what happens? The people have changed in the next sketch. And now we have 4 different looking people produced by the same investigating agency on sketches. That these are the 4 people. Now you tell me, जब 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे तो पहले 3 फोटो बने कैसे? और फिर वो 3 के 4 कैसे बने? This is strange. It is funny and it is scary because this is fabrication. Now, even over here, if you see in the Gauri Lankesh case, the coordinators they kept naming in different documents, kept changing. एक आदमी को उन्होंने सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट किया है कि we saw a person like him, similar in appearance, going from near her house. On that basis, this guy is in jail. That he was conducting a recce. Now, his physical description doesn't match that of the killer. He's a hefty guy. The killer was a lean guy. चार्ज शीट है बंदा जेल में बैठा है. Now the eyewitnesses, this is a different ball game altogether. The eyewitnesses have been amazing. Now in the Dabholkar case, the eyewitness is 200 meters away, which is 600 feet away. He says I identified the persons and उसके description के ऊपर sketch बनाया है. He identified the type of the motorcycle also which was used and everything. And the only problem with that is the optical range is about 200 feet and he was 200 meters away. उसके बेसिस पे आपने 2 अलग अलग बार स्केच बनाए हैं वो आदमी के इंटरव्यू के ऊपर, जिनकी आपने शक्लें देखी पहले, राइट? नाउ सम ऑफ द विटनेसेस सेड इतना जल्दी हो गया, हम हमारे सामने हुआ लेकिन हमने देखा नहीं, हमको याद नहीं है कुछ भी, राइट? They are officially there on record saying that we were too scared to identify the persons, we are not able to identify, and then those people also have made sketches and then they have identified people based on that sketch. Now it gets even stranger because in the Pansare case,
Now, it wasn't only Comrade Pansare who was shot, his wife was also shot. And in this case, there are witnesses who saw it happening at close range. Okay, 3 witnesses, including his wife, who survived the attack. All 3 have identified different people as the killers. No 2 of them have identified the same person. Yet, you have named people, you have put them in jail. And classic out of all was the Gauri Lankesh case, where the killer was captured on CCTV camera, where sketches have been made, and arrests have happened, and charge sheet has happened. And you know what? When you see the CCTV footage, you will realize that the killer was wearing a helmet on a dark road, in a dark area. हेलमेट पहने हुए आदमी का आपने स्केच बना के पर्सन को अरेस्ट किया है. Murder weapons is a very different story. All may have read articles that all were linked and all murders were committed by the same weapons. You know what? They don't have any weapons. And it gets even more strange because पहले जब उन्होंने दाभोलकर murder case में किया था, they said we have the weapons, we have a forensic match, you have a forensic lab report officially giving a match. 2 years later, another agency comes and says, no, sorry, that report is wrong and it isn't a match. It is matching actually with the other murder weapon. And where is that murder weapon? We don't have it. Now, to commit forensics में क्या होता है? अगर मेरे को देखना है कि ये गन से बुलेट जो फायर हुआ है, यही गन से हुआ है या नहीं, right? What will happen is, you take the weapon, you test fire a bullet, see the markings on that bullet. And if that weapon is causing similar markings, you can say that it is a similar type of weapon. Or maybe it may even be the same weapon. उसके लिए आपको गन तो चाहिए, right? They don't have any weapon. The only weapon which was ever identified, the weapon was when 2013 during the Dabholkar murder. और उन लोगों को जिनके पास से आपने recover किया था, उनको आपने छोड़ दिया है, उनको आपने charge नहीं किया. And those were history shitters, notorious people. One of them even had a bike with the same description that was named, right? Now, इसके बाद में जब उन्होंने पहली charge sheet file की, which was the charge sheet in which Sarang Apolkar and Vinay Pawar were named, they said that they committed the murder and they went away and they left their weapons and bike behind for someone else to dispose of. So what happened? Who disposed them of? We don't know. In 2018, the person who's arrested says, allegedly, that weapon was with me and I took the weapon and I broke it into pieces and I threw it into Thane Creek. Now you tell me which story we are supposed to believe? That the weapon has been recovered? That the weapon is missing, we don't know where it is? Or that the weapon is broken in pieces inside Thane Creek? So they said, okay, we'll solve this, we'll dig up Thane Creek and we'll find the weapon. 8 करोड़ रुपया खर्चा किया थाने क्रीक खोदने के लिए to recover a weapon which was thrown in pieces 6 years back. And they found the weapon. Intact. उनको एक घोड़ा मिला. The only problem is it was not in pieces. And its photos were published in all papers. See, the murder weapon has been found. What happens after a few months? दुम दबा के रिपोर्ट देते हैं कि that weapon is not the murder weapon. तो ये नहीं लिखा कि इस पे क्योंकि फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं इसलिए. Now, the good old ways of police functioning in the country continue to persist. Torture till you confess. Right? 18 suspects rounded up in Gauri Lankesh case. Tortured till they said, "नहीं हमने किया है." 15 of them in court said, we were tortured and forced to give these statements. The remaining 3 said, we have not signed any statement and those statements are attached without signature in the documents, in the charge sheet. Without signature documents in the charge sheet, saying that he has written. What value that has? First of all, a voluntary statement itself in front of police doesn't have any value. ऊपर से unsigned document आप produce करते हो saying that it is his statement. Now, the allegations were, every person will say ना कि हर गुनहगार यही बोलेगा कि नहीं मुझे जबरदस्ती torture करके confession करवाया है आपने, right? But in these cases, the court has actually noted that there was torture, they were forced, and they have refused to grant the investigation authorities any further extensions of custody. And they have sent to judicial custody and said कि अगर कोई भी तुमको examine करना है, their lawyer has to be present.
And this is not something new, right? In all the cases this is happening. आप कोई भी case उठा के देख लो, you will find people being tortured till they confess and the case falling apart in the court, right? So what I think is the objective is not to get justice over here. It is just to run a narrative. Nobody is interested in actually finding out who's killed these people. You have already judged in advance that Godsewaadi लोगों ने किया है. Actual statement given by Chief Minister. So you have declared this just a few hours within the murder when your investigation hasn't even started. You have already pre-decided कि तुमको किन लोगों के पीछे जाना है. जब आपने ये डिसाइड कर ही दिया है तो आप कुछ भी करके फैक्ट्स को उसके अराउंड घुमा के जबरदस्ती बिठाओगे, अगर नहीं बैठते हैं तो भी. Is it possible that some Hindu activists may have killed these people? Why not? Their activities were very clearly not in sync with what is the mainstream of society. Many of them were involved with Naxals. Some of them were already facing death threats, right? लेकिन आप ये जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करोगे कि चारों को एक ही गुट ने मारा है, you will end up in deeper and deeper trouble with yourself. And that is why these investigations are thoroughly messed up. Ruined is the correct word for it. कोई भी convict नहीं होने का लाइन में. हो भी गया तो when it goes to the higher court, they will get released because all you have is tortured extractions of confession. You literally do not have anything else. If one person gets bail in one case, they are immediately named as accused in another case and arrested again. Dr. Tawade is an ENT surgeon, right? Named in one case, you will read in my book why he was named and how he was named and by whom he was named, right? Arrested, the court has held that there is no evidence against him, release him on bail and immediately his name appears in the other case and he is again put behind bars. When you want to run a narrative and you're not interested in actually finding out what is the problem, who has actually killed these people, you will keep manufacturing things and keep leaking things to the media so that you get bites and you can run the narrative better. और मजे की बात है ना कि मेरे बुक में आप देखेंगे तो एक लास्ट में चैप्टर आता है जिसमें during the same time period 2013 to 2017 not less than 100 Hindu activists have been killed. Out of them, dozens have been killed by the same agency. Same organization has killed them. Where is the narrative that they are being killed as a part of a conspiracy against Hindus? You will read in the book there are not less than 100 names, maybe 150 people who are killed during exactly the same time period. आपको 4 लोगों में conspiracy दिखती है, आपको 100 लोगों में सिर्फ communal violence दिखता है, which is the official name given by the government to this. Karnataka government, because there were dozens of people killed in Karnataka by PFI activists and it was named as communal violence, not as a targeted killing. So I am trying to ask some very important questions in this, that where is honest investigation? And why we are functioning with this antiquated police system which is functioning in such a horrible manner? Why should the police be under such a tight control of governments that they forget that their job is to actually find people who have done crimes? There has been so much problem in these cases. Despite this, the people who have done these investigations have been awarded 25 lakhs to the team which investigated, each person who investigated the Gauri Lankesh murder. President's merit award to the person who investigated the Dawalkar murder and created that rubbish story which you just saw. How do these people get away with this? Because the information which we get is not coming through to us. And that is why I found the need that this is just ridiculous. This has to come before people. This is the reason why I was so angry and upset that I decided that this has to be written. And somewhere a start has to be done. आपको कब तक ऐसे antiquated police system के साथ में हम काम करेंगे? So police reforms is a must. We need to have it. Every government has been dragging their foot because nobody wants to relinquish control. But वक्त आ गया है that we asked some accountability from people. ये मुझे बहुत hurtful लगी है बात कि इस तरीके से कोई narrative चलाने की कोशिश करेगा and the police and will cooperate with it. This is absolutely absurd. And so I will end my talk with this note that please demand police reforms. Please read the book and
इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो मैंने लिखी नहीं, जो अभी ये पीपीटी में नहीं आई हैं, जो आप पढ़ेंगे तो आप काफी शॉक्ड हो जाएंगे. मच मोर शॉकिंग थिंग्स देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, which are there. Many of the main characters you will understand who are usual suspects, which most of you must be knowing also. बहुत सारे नाम उसमें आएंगे जो आपको familiar लगते हैं. And I do hope you all read it, you all share parts of it among your circle, encourage more people to buy the book also and to read the book also. खरीदने से automatically नहीं जाता है. So please do read and please share with maximum people possible. And thank you very much once again for coming. सभी को प्रणाम. अब ऐसा है कि मुंबई से आया हूँ भारत की राजधानी में, और मुंबई से आया हूँ महाराष्ट्र की राजधानी में, जहाँ पे महाराष्ट्र से लोग मुंबई में आते हैं. मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, क्रिमिनल ट्रायल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो एक आशा से मुंबई में आते हैं कि कहीं न्याय मिले, और वो आशा उनकी चेहरे पे दिखती है हमें, ये मैं बताना चाहूँगा. और आज मैं उसी आशा से आपके सामने आया हूँ. शायद मेरे चेहरे पे दिखे नहीं दिखे, लेकिन आशा तो मन में है. दूसरी बात बताना चाहूंगा, मंच पे कितने सारे, आज मंच के ऊपर, मंच के मतलब स्टेज डायस के ऊपर, यहाँ पे आप, यहाँ पे कितने सारे अतिरथी महारथी बैठे हैं जिनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं टेलीविजन चैनल पे देखते हैं, आज मेरे साथ है. मैं तो एक हिंदुत्व के इस कार्य में मैं एक सैनिक हूँ, पदाती हूँ, और आप तो अतिरथी महारथी है, तो एक सैनिक की अपेक्षा मैं आपको देख रहा हूँ, और इस अपेक्षा से ही आया हूँ, ये कहना चाहूंगा. तीसरी बात है, ही राइटली सेड कि एक कार्यक्रम में हम मिले थे 2019 में, और उन्होंने पूछा तो मैंने बोल दिया जो बोल दिया. एंड आई एम हैप्पी टुडे कि एक 2-4 लाइनों में मैंने उन्हें बोल दिया था. वो एक चिंगारी थी, उससे एक आग जलने लगी. एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिम, उन्होंने कर दिया. ये किताब एक सर्जन ने की हुई सर्जिकल स्ट्राइक है, ऐसे मैं कहूंगा. तो इस अपेक्षा से आया हूं कि भाई कहीं एक 2019 के कार्यक्रम में एक मेरे दोस्त मिले हिंदुत्वनिष्ठ, तो कहीं एक किताब बन गई और इसका आज यहाँ तक प्रवास हो गया. तो शायद इस कार्यक्रम में कहीं आग जला सकूं तो मेहरबानी हो जाएगी, कुछ आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदुत्वनिष्ठ जेल के अंदर है, 8-8 साल है, और उनको पूरी दुनिया में ऐसा चित्र बनाया गया है कि ये ऐसे बड़े भयंकर दहशतवादी है, इन्होंने ये 4 लोगों को मारा. अगर इनको हो सकता था, मतलब कहीं पे तो भारत में कुछ चीजें जिंदा है, नहीं तो अगर इन्हें हो सकता था तो ये बोलते इन्हीं लोगों ने इन 4 को तो मारा ही, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो को भी मारा, और उसके पहले केनेडी को भी मारा. इनको यहां तक ये स्टोरी लेके जानी है. अगर हम यहाँ पे नहीं इन्हें रोक दे पाए तो ये बड़ा मुश्किल है. कश्मीर के बारे में, मैंने कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, अभी तो मूवी आ गई, अभी तो उसमें से बहुत सारी चीजें आ रही है. मैं ये वेदना लेके आपके सामने आया हूँ. समय बहुत कम है, लेकिन तब क्या हुआ देखिए, कश्मीरी हिंदुओं को लगा कि अरे पूरा भारत हमारा हिंदुओं का है, कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कोई खड़ा हो जाएगा. बहुत समय के बाद शायद हम खड़े हो रहे हैं, ऐसी चीज हो गई है. तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो केसेस है, दिल्ली में कोई खड़ा होगा या नहीं होगा, ये सवाल लेके मैं आ रहा हूं, मदद मांगने आ रहा हूं. उन्होंने थोड़ी सी चीजें बताई एट द कॉस्ट ऑफ सम ओवरलैपिंग. मैं उनकी परमिशन से थोड़े से 2-3 उसमें से चीजें थोड़े ज्यादा बताना चाहूंगा. ऑफ कोर्स इससे ऐसा ना हो जाए कि आप किताब ना खरीदे, या आपके दोस्तों को, आपके प्रियजनों को उसको एक प्रेजेंट करके भी ना दे, ऐसा ना हो जाए. एक 2 उदाहरण बताता हूं, ज्यादा नहीं लूंगा वक्त. पानसरे केस है, सिचुएशन देखिए क्या है. एक ये 81 इयर्स के है, वाइफ सम 68 इयर्स की है. मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए थे. मॉर्निंग वॉक थ्योरी सुनी है ना हमने, मॉर्निंग वॉक पे गए थे और मर्डर हो गए. मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए थे, ब्रेकफास्ट करने बाहर गए थे.
ब्रेकफास्ट करके एक छोटी गली से अपने घर आ रहे थे और इनकी हाउसमेड वहीं पे घर के सामने उनका इंतजार करते बैठी है और दो लोग उस गली से ऐसे चल रहे हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि पीछे से एक बाइक आ गई जिसके ऊपर दो लोग बैठे थे। बाइक के ऊपर हमेशा दो बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा तीन बैठेंगे, 10 15 20 तो नहीं बैठेंगे, ये तो कॉमन चीज है। फिर ऐसे हो गया कि ये दो लोग जो पीछे से आ रहे थे बाइक पे, उन्होंने गोली चलाई और जो भी आगे की सब चीजें हम जानते हैं। ये हो गया फरवरी 2015 में। सितंबर 15 में उन्होंने समीर गायकवाड़ को पकड़ा। बोले हमारे पास आई विटनेस है जो बोलता है ये जो टू व्हीलर पे दो लोग बैठे थे उसके पीछे जो बैठा था पिलियन राइडर जो था ये समीर गायकवाड़ था। विटनेस बोलता है उसने इस रंग के शूज पहने थे, इस रंग की जीन्स पहनी थी, इस रंग का शर्ट था, ये सब वो बताता है। दो में से एक समीर गायकवाड़ जो पीछे बैठा है, बहुत बड़ा बवाल हो गया उसके ऊपर। आप सबने वो देखा भी होगा। एक साल आगे आ गया 2016 में। बीच में क्या हो गया, सीबीआई ने डॉक्टर तावड़े को दाभोलकर केस में अरेस्ट कर दिया। पता नहीं फिर कैसे हो गया। 2016 में कोल्हापुर पुलिस ने फिर डॉक्टर तावड़े को अरेस्ट कर दिया और 90 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी। अब ऐसा है, एक गली है, दो लोग जा रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं फिर ये बताऊंगा। और एक गाड़ी है जिसके ऊपर एक आदमी पहचाना गया है जो समीर गायकवाड़ है। तो ड्राइवर कौन है, यही सवाल बचता है, बराबर है ना। अब ये कह रहे हैं कि उमा पानसरे जो वन ऑफ द विक्टिम्स है, तो वो कहती है अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है। ये जो बाइक थी, हम ऐसे चल रहे थे, ये बाइक वाले हमारे थोड़े आगे आ गए, उन्होंने हमें देखा, हमने उन्हें देखा, फिर हम ऐसे ही चलते चलते चले गए, ये हमारे पीछे रह गए और फिर उन्होंने गोली मारी और ये नाम आ गए सारंग कोलकर और विनय पवार। सीधी बात है, अगर आपको ये कहना है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स है, ये आइडियोलॉजी के ऊपर से मर्डर्स है, फलाना फलाना फलाना, तो ये मर्डरर्स ने बोला कि थोड़ा हमारा चेहरा आप देख लीजिए, बाद में कोर्ट में आसान हो जाएगा, पहली बात। तो ये तो मतलब आप समझिए क्या है। और दूसरी बात, अगर उस बाइक के ऊपर समीर गायकवाड़ पीछे बैठा था तो ये दो नए आदमी कैसे आ जाते भाई। लेकिन ये कोर्ट नहीं सुनती। सेम सिचुएशन दाभोलकर केस में है। मैं नाम के साथ आपको बताता हूं। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही हैज रिटन अ कंप्लीट चैप्टर ऑन अ जज हु वाज मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन। आप वो पढ़िए। अब गुजरात के जो रॉयट्स हुए थे उसका सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही थी। गुजरात का रॉयट मेरे ख्याल से उनके हिसाब से भी एक बहुत बड़ी संवेदनशील घटना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला एक बार चार्जशीट आ गया ना, हम कुछ नहीं देखेंगे। वो जो जिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया वो देखेगा, हम नहीं कुछ देखेंगे। तो गुजरात राइट्स में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है। और दाभोलकर केस में या पानसरे केस में 2015 या 16 में चार्जशीट्स आ जाते हैं, फिर भी 2022 तक ये मॉनिटरिंग चालू ही है। भैया क्या कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, ये रैशनलिस्ट है, देश में माहौल ऐसा है, दुनिया में देश की नाक कट रही है, फलाना फलाना फलाना, ये सब आ रहा है। और जब हम कंप्लेंट करते हैं कि भाई साहब आप जो सुन रहे हैं ये केस, आपके पिताजी तो दाभोलकर के साथ काम कर रहे थे, तो आप नहीं सुनिए। इसको जुडिशियल प्रोप्राइटी कहते हैं कि भाई मैं नहीं सुनना है, फिर भी आप सुने जा रहे हैं। और आप में से कोई कभी मैं तो ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि आपको कोर्ट जाना पड़े, ये तो मतलब सही रहेगा कि मैं ये नहीं कहूं। फिर भी अगर कोई कोर्ट में गया होगा तो हाई कोर्ट में मैटर लगना, मैटर केस हियरिंग को आना तो कोई पेड़े बांटेगा, भाई हमारा मैटर आज हियरिंग को आ गया, इतनी पेंडेंसी है। ये जज महोदय के सामने, उनका नाम सत्यरंजन धर्माधिकारी जी, इनके सामने ये मॉनिटरिंग उस तारीख को पहला लगेगा, फर्स्ट केस इन द मॉर्निंग। फिर पूरा मीडिया, हाँ मीडिया आ गया, हाँ अभी चालू हो गया, इस तरीके से चल रहा था। एक बेल है दाभोलकर केस में, 2018 में हमने फाइल किया, डिफॉल्ट बेल कहते हैं उसको। उसमें क्या हादसा है उसमें नहीं जाना है भाई। चार्जशीट 90 दिन के अंदर आया नहीं आया, प्रॉपर जज के सामने आया नहीं आया, इतना ही इश्यू है। उसमें आपने क्या हादसा था, क्या क्रुएल्टी थी, क्या इन्वेस्टिगेशन में, इसमें कुछ नहीं जाना है। 2018 में फाइल किए हुए हमारे बेल एप्लीकेशंस है। बीच में क्या होता है देखिए, एक जज के पास आ गया, उनका नाम है मृदुला भटकर, वो बहुत न्यायी जज मानी जाती थी वहां पे। अब ये इस कहानी के दो एपिसोड है, या ये मैं यहीं पे रोक देता हूं कि ये जस्टिस मृदुला भटकर के सामने आ गया और वहीं पे बाजू में क्या हो रहा था, एक उसकी पैरेलल लाइन है, पिक्चर के पैरेलल लाइन होते हैं वैसे,
तो हम दाभोलकर पानसरे दोनों केस में कह रहे थे, हमारी कम से कम 40-50 एडवोकेट्स की वहां पे टीम है जो एक मूवमेंट के हिसाब से है, कोई किसी पक्ष से होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन जहां तक मुझे हो पाया मैं मेरा कंट्रीब्यूशन करूंगा, इस हिसाब से हम ये सब केसेस लड़ भी रहे हैं। तो हम दोनों केसेस में बोलते हैं भाई चलो ट्रायल चलाओ, चलो चलाओ, 2 शिफ्ट में चलाएंगे, चलाओ ना, आप रुके क्यों? शायद भारत की न्याय प्रणाली के या इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि सीबीआई चार्जशीट फाइल करता है और फिर हाईकोर्ट में जाता, साहब ट्रायल नहीं चलाओ, वो हमको मटेरियल कुछ अभी ये करना है, और हाईकोर्ट एट द ड्रॉप ऑफ हैट इमीडिएटली हाईकोर्ट सुनता, हमको सुनना ही नहीं है, इनको स्टे दे दो। कितना चाहिए स्टे? 2 दिन का चाहिए, 4 दिन का लेके जाओ। इस तरीके से ये स्टे होते होते जाता है। तो एक साइड में ये स्टे वाली पिटीशन जो सीबीआई और कोल्हापुर पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की थी, ये हाईकोर्ट में थी। दूसरी बाजू में हमारे बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में थे, और तीसरी बाजू ये मॉनिटरिंग भी हाईकोर्ट में था। तो ये तीनों चीजें कई कई अलग अलग जज सुन रहे थे। तो एक सिचुएशन ऐसे आ गया कि जिसके सामने डिफॉल्ट बेल है, उसी के सामने ये ट्रायल का स्टे वाला भी, भाई ट्रायल नहीं चलाओ, हमको और टाइम चाहिए, ये वाला भी उन्हीं के सामने है। अब क्या होता है देखिए, ये मृदुला भटकर जी के सामने पहले मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाता है, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह सीबीआई के लिए खड़े होते हैं, जिनको ये और खींचना है और खींचना है। तो ये खींच देती है, उसके ऑर्डर्स आप देख सकते हो, वो बोलती है ये ऐसा है वैसा है, तो आई एम ग्रांटिंग स्टे, 2 महीने के बाद सुनेंगे। अक्टूबर 18 में हो जाता है। सब केस तो पता है ना, दाभोलकर पानसरे केस है, नाम से समझ जाता है। तो ये हो गया ये हो गया अक्टूबर 18 में। नवंबर 18 में उसी जज के सामने हमारा डिफॉल्ट बेल का केस लगता है। द मोमेंट शी रियलाइजेस कि अरे ये तो ओपन एंड शट केस है, बेल तो होना चाहिए, देन शी रिमेंबर्स ये दाभोलकर तो मेरे दोस्त थे, मित्र थे, एक कार्यक्रम में हम साथ में थे, तो जुडिशियरी प्रोपराइटरी में मैं ये केस अभी नहीं सुनूंगी। तो पिछले महीने आपको ये ध्यान में नहीं आया? ये ध्यान में नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये यही जुडिशरी है, मतलब लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट है मीडिया ट्रायल का, और उसमें कहीं पे टैसिटली ये कमीशन कहता है कि मीडिया से ट्रायल या कोर्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। मैं कह रहा हूं भाई ये तो हम देख रहे हैं यहाँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज। इसमें मैंने एक आपको इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे जा रहा था वो बताया। अभी उन्होंने गौरी लंकेश केस का जिक्र किया, उन्होंने हेलमेट की बात बताई। अब ये कह रहे हैं कि परशुराम वाघमारे इज द शार्प शूटर, उसने गौरी लंकेश को बड़े कोल्ड ब्लड से, बड़े इससे उससे 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 गोली मार दी। एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि जिस सीसीटीवी फुटेज में वो हेलमेट डाला हुआ आदमी दिखता है रात के अंधेरे में, और सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं आता, ये रिकॉर्डिंग शायद क्लियर आ जाएगा, आप सबने देखा है। तो वो होने के बाद 1 साल के बाद ये लोग क्या करते हैं, परशुराम वाघमोरे को एक हेलमेट पहनाते हैं, कपड़ा वही स्टाइल का डालते हैं, और फिर वही गेट के सामने एक सीसीटीवी कैमरा में फुटेज लेते हैं। अब 2 फुटेज हम कंपेयर करेंगे, ये कैसे यार? और उसमें आप कर्नाटका ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट लगाएंगे, यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाएंगे। समय बहुत कम है, आप किताब पढ़िए, फिर एक बार बात करेंगे। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि मैं यहाँ पे इस अपेक्षा से आया हूं, ये अपेक्षा व्यर्थ न होने दे। और जो नैरेटिव की बात, दिल्ली में नैरेटिव की बात बहुत चलती है, दिल्ली से जो आएगा वो देश में फैलेगा। तो मैं जो यहाँ पे देख रहा था महाराष्ट्र में, उन्होंने तो बोल दिया कि दाभोलकर और नक्सल, पानसरे और नक्सल, ये देखिए 4 में से 3 लोग तो ऐसे जिनके नक्सलवादियों से कहीं ना नाम आते। तो कहीं इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? नहीं हो जाएगा, आप बात ही नहीं करो उसके बारे में, बात नहीं करना है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, ये 4 मर्डर्स के, इसमें मैं बेस्ट बेकरी जो गुजरात की रॉयट वाली केस है, मैं उसमें भी हूं, मैं मालेगांव 2008 के ट्रायल में भी हूं। मतलब हमारा तो एजेंडा एकदम साफ क्लियर है भाई, जहां पे हिंदू टेरर की बात आप करेंगे, हम हमारा वकील पत्र डाल देंगे। ऑफ कोर्स इस अपेक्षा से डालेंगे कि मुंबई में कहीं हमें मदद लगेगी तो दिल्ली से आपसे कहीं हम हक से मांगने आएंगे। आ सकेंगे ना? जी धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं कहता हूं, ये मेरा रियलाइजेशन है, शायद आप इस बारे में मेरे से ज्यादा जानते होंगे या व्हाटएवर, बट आई एम ओपनिंग इट, आई एम कीपिंग बिफोर यू फॉर अ डिस्कशन। ये 4 मर्डर होने के बाद मैंने ये सब पढ़ने लगा, ये सब देख रहा था, और आप देखिए
महाराष्ट्र की ही बात नहीं है। आप देखिए ये 4 मर्डर के बारे में मीडिया में बहुत कुछ आया, बराबर है, प्रिंट मीडिया में आया, बहुत मतलब एक टन्स ऑफ kilograms of papers on this, or hours, hundreds, thousands of hours of news channel debates, this, that, on this, right? एक माहौल ऐसे बन गया कि गांधी को एक माथे फिरू गोडसे ने मारा, उसके बाद देश में कुछ गलत नहीं हुआ था, सब शांति थी, कोई कहीं क्राइम नहीं हो रहा था। उसके बाद 2013 में दाभोलकर को मारा, अरे क्या भयंकर बात है। फिर 15 में पानसरे को मारा, फिर इमीडिएटली कलबुर्गी को मारा। आपको याद रहे ये 65 अवार्ड वापसी जो शुरू हुई थी ना, वो इसी में चालू हो गई थी। और फिर गौरी लंकेश को मारा। कोई एक्टर बोलने लगा मुझे तो देश में रहने को डर लगता है, ये सब माहौल ऐसा है वैसा है। एम आई राइट? अब सर उसकी दूसरी साइड देखिए, हम तो लॉयर हैं, हम तो लॉ के हिसाब से बात करेंगे, हम तो एविडेंस के हिसाब से बात करेंगे। मैं उस हिसाब से आपके सामने एक चीज रख रहा हूं कि मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेट अस से कि सम पीपल or a same group of people have killed these 4 persons. Okay, fine. And then you are saying that the atmosphere is so poisonous, so venomous, so this, so that, so that, so that. Now let us compare them, भाई। आप सिंगल साइड तो नहीं बोल सकेंगे, कॉइन की दूसरी साइड भी तो देख लेंगे। अब दूसरी साइड क्या है देखिए, मैं ये चारों के चारों कम्युनिज्म से कहीं ना कहीं उसी फोल्ड में से थे, ये भी तो बात पक्की है उसमें। तो ये कम्युनिज्म का एक एंगल है, एक ऑर्गन है जो है नक्सलाइट्स। तो भाई नक्सलाइट्स ने देश में कितने लोगों को मारा, इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको पूछूं, किसी के सामने किसी के पास एग्जैक्ट फैक्ट है, फिगर है कि नक्सलवादियों ने देश में कितने लोगों को मारा? मैं बताता हूं, वो आंकड़ा 14,000 से ज्यादा है। और ये लोग कौन थे? ये 14,000 लोग आदिवासी थे, ये ट्राइबल्स थे, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, ये सीआरपीएफ थे, ये एमएलएस थे। लेकिन हम लोगों को एक डिसेंसिटाइज किया गया है। हम पेपर में उसका न्यूज पढ़ेंगे कि बम से जीप उड़ाया, बम से गाड़ी उड़ाया, ये हुआ वो हुआ, और हम ये भूल जाएंगे। हमको याद सिर्फ ये चार मर्डर्स रहेंगे। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सर ये मैं मानता हूं कि ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मैंने बेस्ट बेकरी की बात की, गुजरात में रॉयट हो गए और देश में ये एक बहुत बड़ा भयंकर चैप्टर था, मोदी जी ने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हमने कितना सारा सुना है। मैं एक नाम आपको पूछता हूं, मौलाना उमर जी, कभी सुना है नाम? नहीं सुना। गारंटी के साथ मैं पूछ रहा था क्योंकि मैंने मुंबई में भी ये सवाल पूछा था। अब ये मौलाना मोहम्मद उमर जी वो आदमी है जो पुलिस के हिसाब से जो गोधरा के कार सेवकों को जलाया गया था ना, जहां से ये रिएक्शन, जहां से ये सब चालू हो गया, मतलब चालू कहां से? ये क्या कहते हैं कि बाबरी गिर गई इसलिए मुस्लिम टेररिज्म चालू हो गया, ये वो तो रिएक्शन था। तो भाई गुजरात में जो रॉयट हो गए, मान लो हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? रिएक्शन कहां से शुरू हो गया? वो जो कार सेवक जल गए उससे हो गया, साबरमती एक्सप्रेस का। ये मौलाना उमर जी वो आदमी था जो पुलिस के हिसाब से इस ट्रेन बर्निंग का मास्टरमाइंड था। क्या हुआ उसका? Acquitted, and nobody is talking about it. And the government of India engaged additional Solicitor General Mr. Gopal Subramaniam to defend those terrorists. Yes. Haji Bilal, Maulana Umar, I have filed the affidavit on behalf of government. Yes. Thank you very much, sir. Therefore, I have come with... Hareen Rawal, Assistant Solicitor General, and Gopal Subramaniam, additional Solicitor. Gopal Subramaniam went from here to Ahmedabad to defend those terrorists. Yes. So they are not charged under quota. And we have a additional Solicitor General in Mumbai who does not dare to tell the High Court, "Sahab, you do not need to hear it. The law is settled by the Supreme Courts. You just dismiss it. You just dispose it." No, this will not happen. तो मेरा टाइम बहुत कम है, मैं I will stop here. मेरी छोटी सी विनती है, ये पढ़िए, दूसरों को दीजिए, और आशा है कि दिल्ली से ये चीज के लिए कहीं ना कहीं मदद हो जाए। ये जो इनोसेंट लोग उसमें फंसे हैं, ये ट्रायल चलेगी, ये मीडिया परसेप्शन हर जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, कहीं ना कहीं ये तोड़ना पड़ेगा। यही कह के मैं मेरा तो देवियों और सज्जनों, आज से कुछ साल पहले, कम से कम 1 या 1.5 दशक पहले,
हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे, हम सनातनी लोग, क्योंकि संचार की जो सुविधाएं थी वो बहुत सीमित थी, और जो जो साधन थे संचार के, आपको मालूम है कि उस पे वामपंथियों का कब्जा था। लेकिन आज इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक पैरेलल एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है, और वो बहुत जबरदस्त कंटेस्ट कर रहा है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं, ये होम मिनिस्ट्री के साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत हिंदू टेरर को अनरेवल करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, मनी साहब ने। लेकिन मुझे याद है कि मैं एक बार सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज में बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि आज देखते हैं, ये मैंने सारे वो एक फ्लो चार्ट बनाया, और फ्लो चार्ट जब मैंने बनाया तो मुझे पता नहीं, जैसे वो यूरेका मोमेंट होता है आफ्टर 15 मिनट्स, सब कुछ क्लियर हो गया। और मेरे साथ वो क्लॉस के जो डायरेक्टर थे, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, एक ही साथ हमने कहा कि द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड ऑन करकरे। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा, इशारा काफी है। ठीक है, तो ये वहां मुझे याद है उन दिनों अर्नब गोस्वामी टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, और उस समय यू नो एनीबडी हु वेंट ऑन नेशनल ऑन सॉरी टाइम्स नाउ ऑन हिज डिबेट, ही बिकेम एन इंस्टेंट सेलिब्रिटी। तो मैं काफी बार जा चुका था। एक दिन मैंने उनको बोला कि देखिए, आपने जब भी मुझे बुलाया है मैं आया हूं यहाँ पे, लेकिन आज आपसे एक फेवर मांगता हूं कि मुझे 3 मिनट अनइंटरप्टेड आप दे दीजिए। एंड थैंकफुली उन्होंने 3 मिनट मुझे दिया, और मैंने उसमें सारा हिंदू टेरर का मैंने प्लॉट उनको वहां पर पूरे नेशन के सामने मैंने बता दिया। फिर मैंने बाकी कई उदय इंडिया वगैरह में मैंने कई आर्टिकल्स उस पे लिखे। लेकिन उसके बाद से क्या है कि उसके बाद मनी साहब ने किताब भी लिखी, और कई किताबें अब आ रही हैं। अभी मधु किश्वर जी ने एक किताब लिखी है कठुआ, उस पे मैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं जब नया नया फौज में भर्ती हुआ था तो हमारा जो टास्क था, हमारा काउंटर अटैक के टास्क था, ये सामा से गुरदासपुर तक, तो 2-2 महीने 3-3 महीने उधर रहता था। तो वो इम्प्रेशंस जो है अभी भी बहुत बहुत ताजा है। तो उस किताब के जरिए उस किताब के जरिए उन्होंने, मधु किश्वर जी ने उसको कंटेस्ट किया है। ये पूरा जो ये आपसे इतना ही मैं बता सकता हूँ उस किताब के बारे में, कि ये पूरी जो ये घटना की जो फैब्रिकेशन थी, जो रचना हुई थी, वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि हिंदुओं को तो ये कश्मीर से भगा दिया था इन्होंने, और अभी इनका प्लान था कि इस केस के जरिए, ये कठुआ केस को क्रिएट करने के, जितने हिंदू जो जम्मू रीजन में हैं उनको भगा दिया जाए। और मैं और पुष्पेंद्र जी अभी 2-3 दौरा किया था हमने जम्मू में, तो वहां पे लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि सर, अगर ये 370 नहीं हटता तो हमने बिल्कुल यहाँ से पलायन करने का सोच लिया था। और बहुत देर हुई साहब 370 हटाने में। मैं उस दिन एक अम्बेर खान नाम की एक महिला, पाकिस्तानी महिला, वो आरिफ अजाकिया के उसके प्रोग्राम पे मैं सुन रहा था। वो सिंध की यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री की में थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और कहा कि जिस दिन
जिस दिन कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन हुआ था उसी दिन 370 हट जाना चाहिए था, या अगर उस समय नहीं कर पाए तो जब वो विवादित ढांचा जब अयोध्या में गिरा था उस दिन 370 हट जाना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि हमको ये जो हिंदू जेनोसाइड जो है, हम बात ही नहीं करते, हमने कभी आवाज उठाई है हिंदू जेनोसाइड की, और हम अपना दर्द बयान करने में इतने हिचकिचाते हैं और इतनी देर कर देते हैं। इट टेक्स यू 3 decades to sensitize you about the plight of the Hindus who made an exodus from Kashmir. 3 दशक आपको लग गए, और वो भी एक पिक्चर जब आपको दिखाई गई तब। और ये भी बता दूं कि अगर उस पिक्चर ने 300 करोड़ प्लस का जो बिजनेस अगर नहीं किया होता तो बहुत से हमारे ही अपने बीच में लोगों हैं, उनकी रुचि कुछ नहीं रहती उस पिक्चर में। इट्स अ शेम। Yes, it's a matter of pride कि that एक मूवी जिसमें कोई बहुत एस्टैब्लिश्ड हीरोइन नहीं है, इतने लोग देख रहे हैं, ये लोगों का ये पेंट अप इमोशन है। उसके बाद आपको 1.5 दशक लग गए ये केरला के स्टोरी बताने में। डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी कौन, अभी वो भी कोई सोच रहा है बनाने की? उसके पहले मोपला रिबेलियन की किसी ने आज तक कहानी नहीं बताई। और आप देखिए कि हम कितने डिफेंसिव हैं, लेकिन अगर किसी चीज को रिविजिट किया गया तो वो है, जैसा आपने कहा, वो ट्रेन गोधरा, वो साबरमती एक्सप्रेस का वो चलाने का, उसको बार बार लोग रिविजिट कर रहे हैं। तो कमी कहां, हम में क्या कमी है, इस पर हमको गौर करना होगा। और आज मैं, चूंकि ये कर्नाटका का अभी चुनाव हुआ है, नतीजे आए हैं, और मैं बड़े गौर से मैं कुछ उस अध्ययन कर रहा था, और मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने रिजल्ट्स देखा कि जिसने भी अपनी विचारधारा छोड़ी वो डूब गया। जो अपने विचारधारा पे कायम हुआ रहा वो सफल हुआ। आपको मैं उडुपी जिला, जहां पे ये पूरा ये बुर्का वाला जो पूरा कंट्रोवर्सी था, उस जिले में बीजेपी ने सारी सीटें जीती है। ठीक है, एक उसमें से एक जो मेन लीडर जो थे, मैं नाम, he has won, one of them has won by 32,000 votes। तो ये अपनी आप अगर विचारधारा देखिए, ये इलेक्शंस टेम्परामेंटल चीज होते हैं। इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, उसमें कोई बहुत, आज आप थोड़ी देर के लिए कोई डिप्रेस्ड होगा, कल को खुशी होगा, ये चलता रहता है। लेकिन आपकी अगर विचारधारा में आप कमजोर पड़ गए तो फिर नोबडी कैन हेल्प यू, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये देखिए, एक मैं आज एक परवेज हुडूबॉय का एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं। ही इज अ साइंटिस्ट, पाकिस्तान का, एंड अ वेरी वेल नोन कॉलमनिस्ट आल्सो। तो परवेज हुडूबॉय एक कहते कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बस से कंपेयर किया है। कोई भी नेशन स्टेट, कोई स्टेट, एक बस, वो क्या होता है, एक बस में पैसेंजर होते हैं, उस पैसेंजर में से आप एक चालक चुनते हैं, ड्राइवर। वो स्टीयरिंग पे कौन स्टीयरिंग पे बैठेगा? वो तो किसी नेता को ही आपको चुनना पड़ेगा। अब वो नेता ये डिसाइड करना है कि मैंने किस स्पीड से ले जाना है, कहां रुकना है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो तय करता है। लेकिन पाकिस्तान में वो कहता है कि ड्राइवर तो
फौज चुनती है। अच्छा, फिर क्या होता है, एक चेसिस होता है, एक बॉडी होता है। तो चेसिस और बॉडी है वो फौज होती है, लेकिन वहां की फौज वो बॉडी का मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो जाके वो इंटीरियर बन गई जाके वो बस की। ठीक है ना, वो देखते हैं ना अंदर में लाइट्स वाइट्स पूरे, वो मतलब वो इंटीरियर पे उनका ज्यादा ध्यान रहे। और तीसरा चीज है इंजन, कि अगर आपका इंजन ठीक है तो आप किसी भी दुर्गम पहाड़ को निगोशिएट कर सकते हो। अगर आपका इंजन ठीक नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे देश को बुलाते हो कि चलो थोड़ी मेरी गाड़ी में हाथ लगा दो, तो ठेल दो, है मैं इसको निगोशिएट कर लेता। और आखिरी में है फ्यूल। बिना ईंधन के तो कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। और फ्यूल क्या है? ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। और इस ब्रेन में, पाकिस्तानी ब्रेन में जिहाद का भूसा भरा हुआ है। वो गाड़ी चलेगी कैसे? और वो ही भूसा हमारे यहां भी भरा हुआ है, वही भूसा हमारे यहां भी भरा हुआ है। और आप उसको ये कर, लेकिन हम फिर भी हम आगे की तरफ तत्पर हैं, जबकि जो ईंधन में वो भूसा बायोफ्यूल का काम नहीं कर रहा है, वो उसको पोल्यूट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम, डिस्पाइट दैट, वी आर एडवांसिंग। तो देवियों और सज्जनों, आप देखिए, और ये पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है कि इस देश का बंटवारा हुआ, हमको एक खंडित काशी मिला और पाकिस्तान को इस्लाम का नया काबा। और आज देखिए काशी कहां है और काबा कहां है। तो देखिए, ऐसा है कि मैं अब ये रैशनलिस्ट वाली, मैं पूरे सब्जेक्ट पे आता हूं। आखिर ऐसा क्यों है कि जब ये आप रैशनलिस्ट की बात करती है, जितने रैशनलिस्ट है ना, मतलब इट इज अ बाइनरी विथ हिंदूज। रैशनलिस्ट मींस रैशनलिस्ट वर्सेस सनातन, ठीक है ना। वो बाइनरी में रैशनलिस्ट वर्सेस इस्लाम नहीं है, रैशनलिस्ट वर्सेस चर्च नहीं है। द बाइनरी इज रैशनलिस्ट वर्सेस इस्लाम, सॉरी हिंदू। तो पता नहीं, हम ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाते हैं, और हमारे डिफेंसिव होने के कारण ऐसे ऐसे केसेस क्रिएट किए जाते हैं, हम पर थोपा जाता है और हिंदू टेरर बनाया जाता है। और पूरी दुनिया को देवियों और सज्जनों आज बताने की जरूरत है कि अगर सनातनी अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, रैशनलिस्ट नहीं है, तो बाकी लोग स्टोन एज में रह रहे हैं। क्योंकि सनातन मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि सनातन की कोई एक पूजा पद्धति या रहन सहन का तरीका आप बताएं जो कि कॉमन है इस पूरे देश में, उसका कोई अवैज्ञानिक आधार हो। क्योंकि आप जानते नहीं है तो आपकी मूर्खता के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप किस रैशनलिज्म की बात करते हो? डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, और मैं चुनौती के साथ आपको कहता हूं कि क्या मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है? When I am talking about the empirical proofs, that is cause and effect. There are 1100 basic formulations एलोपैथी में, आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें केवल 44
जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो बेसिक बुनियाद जिस पे है, वो केवल इंपेरिकल उस पे है। बाकी वो जितने मतलब बाकी जो है, इट इज ऑल ऑन हिट एंड ट्रायल। हैज साइंस बीन एबल टू फाइंड एन एंटीडोट टू कोरोना? लोग अस्पताल में गए, और मेरी अपनी वो है कि जो गया वो मरा, जो नहीं गया वो बचा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको इतना डिमोरलाइज मत करो भाई। जब भगवान राम का वो क्या कहते हैं कि गुरुजी से ज्यादा जानते हैं इसमें, करेक्ट मी, राम जी की जब पैदा हुए थे तो 7.5 ही कुछ था उस समय, हाँ जो भी था, बट एक मैं कह रहा हूं कि यू कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। मैं कहीं सुना हूं इसका कि 7.5 ढाई का कुछ उनका था। प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर से इसको चेक भी किया जा चुका है। जी जी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप वो सुधांशु त्रिवेदी ऐसी चीजें बहुत उन्होंने रिसर्च कर रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ जो है हर 12 साल में क्यों होता है, जुपिटर जब एक साइकिल करता है 12 साल में, हाँ? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब हमारे यहाँ when there was no telescope, there was nothing, how did they know? How did they know? And all these rationalists should have first attacked the Bible, which says that the earth is flat. आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी भी there is a society in America, the earth is flat society. And I have met pilots जो कहते हैं यार कि they still believe in that. कुरान कहता है कि धरती चपटी है, बाइबल कहता है टिल गुड अबाउट 11th-12th सेंचुरी वो कहते थे कि नहीं समुद्र में मत जाओ, ज्यादा दूर जाओगे तो गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो हम लोगों को ये बताया गया ना, जो मोस्ट साइंटिफिक पीपल, और मैं बता दूं व्हाट इज हमको, व्हाट डू वी इंप्लाई बाय सनातन, एटर्नल? कोई चीज जो अवैज्ञानिक हो वो क्या बिना विज्ञान के, और जो चीज अवैज्ञानिक होगी वो तो मर जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन साइंस, इट इज बेस्ड ऑन सम लॉज, इसीलिए सनातन जिंदा है। और जहां तक कि ये आपने जिनका दाभोलकर और वो गौरी लंकेश, एक बार उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ ट्वीट किया था, पता नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं था, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन ये बताइए कि ये कौन नहीं जानता कि जितने नक्सली होते हैं ना, इनके आपस में इनकी जो दुश्मनी जो है ना, आप वहां ले लीजिए, आप झारखंड में तृतीय प्रस्तुतिकरण समिति, ठीक है ना, उनके बीच में इंटरनेसाइन वॉर चल रहा है। आप उधर चलिए बंगाल में, 2 गुट बन गए थे, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। आप छत्तीसगढ़ में ये बताइए कि वहां क्या, वो किसको मार रहे हैं? वो अपने ही ट्राइबल लोग को, जो उनको कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रैशनलिस्ट लोग थे, क्या इनके अंदर, इस किताब में लिखा हो क्या इसके अंदर इनके दुश्मन नहीं, इसका खुद का भाई इसका दुश्मन हो गया था? तो ये चीजें भाई, जब आप इस तलवार के रास्ते पे चलोगे, और बाय द वे ये सब के सब ये मर्डरर्स हैं, माओइस्ट, और उससे ज्यादा मर्डरर्स हैं ये जो अर्बन नक्सल्स जो है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में रोज जाकर खड़े हो जाते हैं, और उनको जज साहब, मैं कभी कभी सोचता हूं, माफ कीजिएगा विष्णु साहब, बहुत लोग हैं, नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक व्यक्ति रोज PIL पे खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति करोड़ों रुपया लेता है, वो जज साहब, उन वकीलों का चरित्र
पूरा देश जानता है। और जो जज उनको इतना आदर और सत्कार देते हैं, वो माफ कीजिएगा, वो उनसे भी ज्यादा चरित्रहीन है। सर सिर्फ 1 रुपया जुर्माना करते, वो उससे भी ज्यादा, वो हर सुबह, उसको मालूम है, एक आता है हर PIL में जिसने कहा कश्मीर दे दो। एक दुनिया के जो सबसे बड़े टेररिस्ट है उसको बचाने चले। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप किसी को भी आप जाकर आप डिफेंड करें, जो करना है करें, बट फिर आप पॉलिटिक्स में मत रहिए। बिकॉज इफ अ पॉलिटिशियन गोज इनसाइड द कोर्ट, my lords, he is not a lawyer, he is a fixer. True. He is a fixer. आपको राज्यसभा भी चाहिए, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, और फिर आप जाके वहां पर आप जजेस के, सॉरी, लॉयर्स के बिहाफ में भी आप अपोलोजाइज करने लगते हो। आर यू अपोलोजाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ समाजवादी पार्टी और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो उससे क्या होता है? और माननीय जज साहब लोग से मेरा विनती है कि बड़ा अच्छा हो रहा है ये सब जो, और सुनिए, ये ना, ये अंग्रेजी से ज्यादा इंटिमिडेट मत कीजिए लोगों को। अब कोई अंग्रेजी से ना, अब थोड़ा राष्ट्रभाषा में आप भी इंटिमिडेट होना शुरू हो जाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। ये पूरा ये सिलसिला चल चुका है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आप जानते नहीं हैं कि इसका कॉशनरी इफेक्ट क्या होता है। लोग पहले जिस सहूलियत से किसी को भी अंदर कर देते थे, हिंदू टेरर बना देते थे, किसी को पकड़, मैं ये नहीं कहता अभी नहीं होगा, लेकिन पहले से काफी मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपके इस योगदान के लिए आई एम ग्रेटफुल as a citizen of India for your contribution, and the nation should be. Thank you very much. डॉक्टर अमित थदानी जी और उनकी श्रीमती जी को विशेष रूप से बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बुक हम लोगों के सामने लाई और ऐसी एक महत्वपूर्ण केस स्टडी दी, जो मुझे बुक को पढ़ के लगा कि ये केस स्टडी कम है और प्लेटफॉर्म फॉर न्यू एज इंडिया नैरेटिव ज्यादा है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ भी और शुभकामनाएं भी, और आपकी खूब उन्नति हो, ऐसी मेरी कामना है। हमारे बीच में हमारे क्रांतिकारी युवा कर्नल RS सिंह साहब, जिनको अभी आपने सुना, यद्यपि चूंकि समय की बाध्यता थी, नहीं तो आप इनको घंटों तक लगातार सुन सकते हैं, और इनके पास बहुत सारे थॉट्स एक्सपीरियंसेस हैं। उनको बहुत ध्यान से जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे अनुज बहुत प्रिय भाई एडवोकेट विष्णु जी हैं, जिन्हें कौन नहीं जानता इस वक्त देश में, और अंतर्राष्ट्रीय जगत की आंखें भी उन पर टिकी हुई है, और खास तौर से जो इंटरनेशनल अर्बन नक्सल्स हैं वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एडवोकेट वीरेंद्र जी, इतनी दूर से आप यात्रा करके यहाँ पधारे। दिल्ली में जो भी कुछ होगा, यद्यपि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जो भी कुछ कर सकूंगा मैं उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करूँगा। हमारे बीच में बहुत प्रमुख हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर कपिल साहब, और
यहाँ उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जो विष्णु जी के पीछे हैं, यानी हरि जी, मैं उनको प्रणाम कहता हूँ। और वे बहुत बहुत आदरणीय हैं, बहुत संवेदनशील हैं, और आज के युवाओं के लिए तो विशेष रूप से वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर भी लगाया, और लगातार वह इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व के जागरण के लिए। हमारे साथ आरवीएस मनी साहब भी हैं, आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी और उन्होंने मुझे खुद दी थी, और उसका टाइटल देख के एक बार तो मैं भी चौंका था, हिंदू टेरर। मैंने कहा परहैप्स ही इज राइटिंग ऑन हिंदू टेरर, लेकिन जब अंदर पढ़ा तो समझ में आया ही वाज राइटिंग अगेंस्ट दीज लेफ्ट पीपल हु हैव क्रिएटेड दिस जार्गन हिंदू टेरर। एक बार एक छोटे से किस्से से शुरू करूंगा। लेफ्ट वाले वैसे बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, और 2014 के बाद तो बहुत सारे लेफ्ट राइट हो गए हैं। ये कमाल है, मंच पे जैसे लोग विराजे हैं, और हमारे साथ एक बहुत आदरणीय व्यक्तित्व श्री पिंगले जी, उन जैसे और आप जैसे महानुभावों के सपोर्ट से मनी साहब, मैंने अभी आपके पुस्तक के लिए 2 शब्द कहे थे तो उनमें से कई लोगों के टोपियों के रंग भी बदले हैं। एक मेरे मित्र हैं, बहुत वर्षों के बाद उनसे कुछ समय पहले भेंट हुई, तो उन्होंने कहा, पवन यू आर राइट, नाउ यू आर राइट। मैंने भी उनको उन्हीं की टोन में जवाब दिया, बंधु आई वॉज ऑलवेज राइट। जो राइट है वही रेशनलिस्ट है, लेफ्ट रेशनलिस्ट हो ही नहीं सकता, वो प्रिजुडिस्ड है। प्रिजुडिस्ड नेशनलिस्ट कैसे हो जाएगा? सो आई सेड आई वाज ऑलवेज राइट। उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न था, बट यू पीपल हैव क्रस्ड मुस्लिम्स। हमारे हिंदू भाई जितना इस्लाम को प्यार करते हैं, मुसलमानों को डरने की जरूरत ही नहीं भारत में। तो उन्होंने जब ये बात कही तो मैंने कहा, आपने चेराम पेरुमल जी का नाम सुना है? बोले नहीं। मैंने कहा 622 में यही वो राजा था दक्षिण से जो इस्लाम को भारत लेकर आया था। ये हिंदू था, ये इस्लाम भारत लेके आता है, और 1000 वर्ष तक, और ये भी पूरी दुनिया में इकलौता एग्जाम्पल है बंधुवर, पूरी दुनिया का, कि 1000 वर्ष से माइनॉरिटीज ने मेजॉरिटीज को क्रश किया है भारत के अंदर, मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को कभी क्रश नहीं किया। नैरेटिव क्या है? भगवा आतंकवाद। कहां से दिख गया? हिंदू जेनेसाइड के समय में आंखों पर वाला ऐसे करके वो लगाते थे ना, समुद्री डाकू, वो दोनों आंखों पर लग जाता है। और जब गलती से कोई एक अपराधी जो है, अगर वह किसी भी और दूसरे धर्म का है, तो उनके आंखों पे एक्स्ट्रा लेंसेज चढ़ जाते हैं। यही महाराष्ट्र में हुआ, जो आप दोनों ने, जो आपने तो खैर मैंने कई बार सुना भी, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया, और डॉक्टर साहब ने इस पर किताब लिखने की हिम्मत की, हिम्मत शब्द कहूंगा। जहां सड़क पर चलते लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, और वहां पर एक डॉक्टर जिसकी बहुत सारी चीजें स्टेट पर होती है, एक सोशल वर्कर भी है वो, और वो उस पर एक किताब लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। लेफ्ट में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा बाएं खड़े रहते हैं और यूं यूं करके देखते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, कभी कभी ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन करते हैं, और वो भी इतने डरते हुए कि उसके बाहर कहीं आवाज ना चली जाए। और दूसरे जो लेफ्ट होते हैं, जो बहुत थोड़े हैं
और ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज से गवर्न होते हैं। इंटरेस्टिंगली ये भी बाएं को ही खड़े होते हैं और हमेशा टंगड़ी लगाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और ये क्या करते हैं, मैं कुछ एक सीन्स आपके सामने रखता हूं। जेएनयू में एक बार मैं गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ उस साल, जिसमें ये कहा गया, मैं कानों पे हाथ रखकर इस बात को कह पा रहा हूं, बहुत मुश्किल से कह पा रहा हूं, मां दुर्गा के प्रति उन्होंने अपना जहर उगला और इतना उगला कि उन्हें वेश्या कहा। सीन बदलता है और वही लोग थोड़ी देर बाद यह कहने लगते हैं कि भारत के अंदर कोई देवी देवता है ही नहीं। फिर तीसरा सीन बदलता है और वही लोग महिषासुर की गाथा गाने लगते हैं और उसको एक पोर्ट्रे करते हैं कि ये दलित लीडर है या ये उनका दलितों का मसीहा रहा उस वक्त में और इसको इसलिए मां दुर्गा से मरवाया गया। अब कौन सा नैरेटिव सही है? जब कोई है ही नहीं तो कोई है ही नहीं, फिर महिषासुर कहां से आ गया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मां दुर्गा ने महिषासुर को मारा लेकिन मां दुर्गा है नहीं, ये महिषासुर कहां से आ गया? यही ठीक इस केस में हुआ। जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो है ही नहीं। अब गोलियां कौन सी चला दी? अच्छा, जिस वेपन से गोलियां चल रही हैं वो वेपन भी नहीं है। जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से नरेट किया, वो वेपन भी नहीं है। तो गोलियां किससे चल गई? जब वेपन ही टूटा हुआ था तो वेपन की जांच कैसे कर ली? और जो वेपन इतना नीचे दबा हुआ था उसको आप खोद कहां से लेके आ गए? और वो कौन सा वेपन था? कुछ नहीं पता। और एक केस वीव किया गया। ये जो केस वीव किया गया, इसमें जो लोग पकड़े गए, मैं किसी को जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वो लोग हैं जो बेसिकली वो हिंदू चेहरे थे जो नंबर एक सीधे साधे थे, जिनका कोई सोसाइटी में हुकूक या रसूख उतना बड़ा नहीं था और जिनके कंधे पर बंदूक रख के ये सिद्ध करना चाहते थे कि भारत के अंदर हिंदू टेरर है, भगवा टेरर है। ये वो लोग फंसाए गए और इसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुए, काफी हद तक सक्सेसफुल हुए। और वो सक्सेसफुल नहीं हुए बल्कि हम फेल कर गए। काश कि हम लोग उस वक्त खड़े हो गए होते। और ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। एक हिंदू पर अटैक जब तक सारे हिंदुओं पर अटैक नहीं समझा जाएगा, और यहां हिंदू मुसलमान बात नहीं, वो हम पर अटैक कर रहे हैं जैसे कि केरल में हुआ, उसके बाद 791 में हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली होता चला आया। जब तक कि हमें वह समझ नहीं आएगी कि एक हिंदू पर अटैक सब पर अटैक है, सारे हिंदुओं पर अटैक है, तब तक हम भी वही करेंगे जो मिडिवल एज में हमने किया। यानी कुछ राजा अपने इंटरेस्ट के लिए उनसे ढाके मिल गए। अब आंधियों की जगह नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जितने हिंदू संगठन हैं वो सब जुड़े, मिले, बात करें, बात ही करें, कम से कम एक कॉमन कंसर्न तो जाएगा आगे। और अगर वो भी नहीं गए तो क्या होगा? जब लोग संडे को मिल सकते हैं, जब लोग शुक्रवार को मिल सकते हैं, कुछ लोग प्रेयर करके आ जाते हैं सीधे साधे, कुछ लोग रुक जाते हैं। ये रुकने वाली जनता कौन सी होती है? जब आप इसका अन्वेषण करेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे और तब समझ में आएगा कि हम अपने ही देश में खतरे में हैं। हम अपने ही घर के अंदर कब पराये हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। एक और चीज होती है, अगर पुलिस कत्लेआम मचाने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ ले और वो हिंदू ना हो, कितना जबरदस्त शोर मचता है। लेकिन कभी भी वो पत्थरबाज जो हमारी फौज के लोगों को घायल करते हैं या मार भी देते हैं, तो उसके लिए एक नारा लगाया जाता है, इंकलाब जिंदाबाद। क्या मजाक है भारत के अंदर? मटका व नौजवान।
ये कितनी अजीब सी बात है, विचित्र सी बात है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन भारत के तो हैं ये निश्चित। हम क्यों नहीं कभी खड़े होते उनके लिए? और इसीलिए पाकिस्तान घुस के आया अंदर। हम ऑस्ट्रेलिया में पिटे, आज हमने उसके लिए आवाज उठाई। ठीक है, अभी देर से उठ रही है आवाज, उठ तो रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया। अभी कुछ महीनों से इंसिडेंट नहीं सुना है, आगे तो मैं नहीं कह सकता। ब्रिटेन में 2 इंसिडेंट्स हुए बैक टू बैक। क्या वो ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें इतनी ब्रूटैलिटी से हिंदुओं को पीटा जाता? लेडीज और बच्चियां भी नहीं छोड़ी। अभी टेलीविजन पे तो बहुत देर से पिक्चर्स आई। ऐसा क्यों? अगर हम टेरर वाले लोग हैं तो कैसे टेरर वाले लोग हैं कि लोग हमसे डरते ही नहीं है? किसी ने मुझसे कहा एक बार कि आप तो भगवा, मैं उस दिन भगवा पहने हुए था, आप तो भगवा टेररिस्ट है। मैंने कहा कैसा टेररिस्ट हूं मैं जिससे तुम डर ही नहीं रहे? तुम ब्लैक और व्हाइट वाले भगवा, जरा ब्लैक और व्हाइट वाले टेररिस्ट के सामने खड़े होते तो पता चलता जो मोटा सा, अरे मेसी के बाहर एक बुलडोजर खड़ा करना जी, तो जो मोटा सा कंबल यहाँ पे रखे हुए है, तो ये बात ठीक है, बुलडोजर खड़ा रखना होगा और हम लोग चला सकते हैं बुलडोजर। कुछ धर्म संसद हुई, 3 हुई। उन 3 धर्म संसदों पर क्या कहर बरपाया गया, और उसी से समझ में आने लगा कि हालात अभी भी बेहतर नहीं हुए हैं। मैंने किसी से मजाक में कहा, ऐसे मैं यहां भी मजाक में ही कह रहा हूं, कि अगर ये हिंदूवादी सरकार है और यहां पर भगवा टेरर है तो सरकार किसकी हुई? फिर भी तो नहीं डर रहे। और इतनी बड़ी यहां पर कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ कर रहे हो, और वही, हालांकि थोड़ा सा वैसा मीडिया बचा है, ज्यादातर तो नहीं बचा, लेकिन उन लोगों ने जब वही बात तारिक कहता है तो उस पर कोई है तौबा नहीं बचती। जब वो बात दिल्ली के पास होती है, हाय तौबा नहीं बचती। जब वो बात नेपाल के बॉर्डर पर होती है, भरे कोरोना के समय में 5 लाख लोग बॉर्डर क्रॉस कर, पता भी नहीं चला, इज्तिमा जिसे कहते हैं, वहां पर कोई आवाज नहीं उठती। ये आज भी है। और हम लोग ऐसे हैं, हम टेररिस्ट हो ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं हो सकते। हम कोशिश भी करेंगे तो कोई कृष्ण की दुहाई देंगे, कोई श्री राम जी की दुहाई देंगे, कोई श्री हनुमान जी की दुहाई देंगे, लेकिन हमें टेररिस्ट नहीं होने देंगे। न्याय करना सिखाएंगे, शूरवीर भले बनाएंगे, लेकिन हमें न्याय करना सिखाएंगे। लेकिन फिर भी हमें झेलना पड़ता है जब ईद की बलि नहीं होती, और कामाख्या में अगर उसका 1% भी हो जाता है तो हिंदूज कितने देखिए घटिया लोग हैं, पशु मार देते हैं। ईद पे क्या सेलिब्रेशन हो रहा था? उसके बाद बड़ी अजीब सी बात है, बेटियां भी धर्मों में बांटी दी जाती हैं, और ये लोग कुछ बेटियों के लिए कभी नहीं बोलते। कठुआ के लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनके लिए फेमिनिज्म, यही मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लेफ्टिस्ट के लिए कोई एक्चुअली आइडियोलॉजी है ही नहीं। दैट इज वाई दे आर गवर्न्ड फ्रॉम कैपिटलिस्ट कंट्रीज। और ये मैं बहुत ओपनली आपको कह रहा हूं, लेफ्टिज्म कैपिटलिस्ट डिजाइन्स का एक पार्ट है। ओपनली आज मैं इस बात को कह रहा हूं। बेटी तो भारत की थी, वो लेफ्टिस्ट भी भारत के थे, राइटिस्ट भी भारत के थे, सेंट्रिस्ट भी भारत के थे, लेकिन एक बेटी के लिए आपका बिल्कुल मौन था, बल्कि आपने उसको ये बदलने, केस ही बदलने की कोशिश कर दी। और वहां एक बेटी के साथ केवल बातचीत हुई। मैं हालांकि वह भी उसका भी समर्थन नहीं कर,
लेकिन फिर भी आपने पूरे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को हिला दिया। अब जिस वक्त 1999 में बरखा जी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं, जिससे हमारे कम से कम 300 फौजी उस वक्त खतरे में पड़ रहे हैं, उस वक्त ये सब चीजें याद नहीं आती हैं। अवार्ड दिया जाता है साहब उसको। उस वक्त हम अपनी कंट्री में बेगानों से, अपनी कंट्री के अंदर ये हालत हमारी है। और जबकि हम कह रहे हम कभी नहीं लड़ते। आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे, रिपब्लिक ऑफ हिंदू इंडिया लिख दोगे, हम तब भी नहीं लड़ेंगे, हम तभी भी आपको नहीं मारेंगे। वो कहते हैं मुस्लिम जेनोसाइड। मैं पूछता हूं कहां हुआ? आप तो हिंदू जेनोसाइड कर गए और ढंग से करके गए। मुस्लिम जेनोसाइड का एक केस बता दीजिए भारत के अंदर। प्रशंसा आप करेंगे शाहजहां की। औरंगजेब को एक हमारे इस्लामिक स्कॉलर है, आजकल वो इस टर्म का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन्होंने कहा कि वो तो हमारे लिए आदरणीय है, औरंगजेब आदरणीय है अगर, तो मैं क्षमा कीजिए ऐसे व्यक्ति को आदर नहीं दे सकता जो जिसका आदर्श औरंगजेब हो। उसके बीवी बच्चों को भी उसको आदर नहीं देना चाहिए यदि औरंगजेब उसका आदर्श है, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ। शाहजहां हमारा आइडियल कैसे हो सकता है? लेकिन हमने हमेशा इतिहास की किताबों में अकबर के हरम के बारे में कभी नहीं बताया। अकबर द ग्रेट कह के उसकी प्रशंसा की। ये वाला जो बौद्धिक आतंकवाद है, इसे खदेड़ने की जरूरत है। हमने बॉर्डर पे बहुत काम किया है और बहुत लोग खदेड़े हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हमने मिग 21 से भी की है, तो लांसर पब्लिकेशन की इस किताब से भी की है जो आपने कहा। लेकिन अब इस बौद्धिक आतंकवाद को खदेड़ने की जरूरत है और इसके लिए बहुत जरूरी है थिंक टैंक बनाया जाए, सब लोग मिले और उस पर बात करें। नहीं तो जब आप हिजाब पर प्रश्न उठाएंगे तो उसकी रक्षा के लिए बहुत लोग खड़े होंगे और वही लोग थोड़ी देर बाद घूंघट पर हंसी उड़ाते हुए मिलेंगे आपको। हिजाब इंडिविजुअल फ्रीडम है, मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो घूंघट नहीं है क्या? दीदी की मर्जी है, वो इतना लंबा घूंघट निकाले, इतना लंबा घूंघट निकाले, यहां पल्ला रखे, क्या ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा? इसमें एक्सप्लॉयटेशन कहां गया? इसमें फेमिनिज्म कहां गया? अगर था तो दोनों जगह था, और या फिर कहीं नहीं था। ये इसलिए बहुत सेलेक्टिव अटैक करते हैं, और चूंकि इनके अटैक्स जो होते हैं वो बहुत प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता और हम कब उनको सीखते चले जाते हैं। ये तो 2010 के बाद से धीरे धीरे अकल आने लगी और आज ये अकल थोड़ी सी बड़ी हो गई है और अब समझ में आ रहा है कि इनके डिजाइन्स क्या है। ऐसे ही दो पशुओं का कंपैरिजन होता है, कुत्ते का और काऊ का। आप अगर कुत्ते को प्यार करते हैं तो आप एनिमल लवर हैं, और आप गाय को प्यार करते हैं तो हिंदू टेररिस्ट हैं। ये डिस्टिंक्शन दुनिया में अगर कहीं देखने को मिलेगा तो केवल भारत में। पूरी दुनिया में तो भैंसे को भी उतना ही प्यार किया जाता है, और हमने तो उन्हें भी उतना ही प्यार किया है भाई, ऐसा थोड़ी है। नौकरियां मिली हैं उन्हें यहाँ, हाँ उसका उपयोग उन्होंने क्या किया ये दूसरा मैटर है। तो बताइए, एक पटाखे से अगर कुत्ता डर जाए हैं, अब किसी का पटाखे पे क्या वो पत्थर भी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है टीनी बजा दे, कुत्ता डरेगा। डरने वाला ब्रीड होगा तो डरेगा, अब एल्सेशियन टाइप होगा तो नहीं डरेगा। अब कुत्ता डर गया तो मतलब हम लोग इनसेंसिटिव लोग हैं। आप गाय मार के खा गए तो आप सेंसिटिव हैं। ये भारत में हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हुए। हमने टाइगर को राष्ट्रीय पशु एक्सेप्ट कर लिया, ना जाने क्यों। हम गाय को राष्ट्रीय पशु बनाते तो ये हालत नहीं होती। हम लोग मिलेंगे,
कहीं ना कहीं बातें होंगी, एक प्रेशर तैयार होगा, तो इस सरकार के समय में ये हो भी जाएगा। हो सकता है कि ये वाली ब्रीड की गाय नहीं, ये वाली ब्रीड की गाय, कम से कम 13 तो है, लेकिन गाय तो होगी। कोई बात नहीं, उसमें हम, ये तो घर का मामला है, हम लोग तय कर लेंगे कौन सी गाय को राष्ट्रीय पशु माने, लेकिन वो गाय तो होगी, बस इतना बहुत है। ये बहुत छोटी सी बातें आज बहुत बड़ी हो जाती हैं जब रवीश जी एसडीपीआई का समर्थन करते हैं। एक पत्रकार ऐसी हल्की बात कर रहा है और एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं और कहते हैं देखिए कितना सज्जन व्यक्ति है, जेल जाने को तैयार है। मैं कभी उसके बाद मिल नहीं पाया उनसे, नहीं तो मैं कहता अगर वो तैयार है तुम भेज देते। जब वो चला जाए तो आप रोटियां लेके तो जाना उसके लिए, लेकिन कभी अपने चैनल्स पर कंप्लेंट मत करना, क्योंकि आप उन लोगों के लिए नहीं बोले थे जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक के अटैक्स में निर्दोष फांसे गए थे। तो आप जर्नलिस्ट थोड़ी हो, आप एक पर्टिकुलर लाइन के एक्टिविस्ट हो। जर्नलिस्ट बायस नहीं हो सकता, होना तो नहीं चाहिए, हो तो सब कुछ सकता है। उसके बाद एक अजीब सी और बात है, यद्यपि कर्नल साहब ने बहुत खूबसूरती से उसका वर्णन किया। गीता आप पढ़ते हैं, आप हिंसा फैलाते हैं, लेकिन अगर पवित्र कुरान पढ़ते हैं, आई डू ऑनर फॉर ऑल द धर्मशास्त्र वर्ल्ड ओवर, किसी का भी हो, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे लिए मेरा धर्मशास्त्र भी तो उतना ही आदरणीय है। तो अगर हम गीता पढ़ते हैं तो हिंसक हो जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं तो नहीं होते, और बाइबल पढ़ते हैं तो बिल्कुल नहीं होते। अब चाहे हम समुद्र में चलते उधर गिर जाए वो अलग बात है, लेकिन हम होंगे नहीं। कर्नल साहब की बात से क्यों लेते हुए कह रहा हूं, ये छोटी सी चीजें, उसमें से एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा वकील साहब, कि हिंदू एक्सप्लॉइटेटिव होता है क्योंकि कास्टिस्ट होता है। इस फैक्ट को डिनाई नहीं करता। कास्टिज्म के खिलाफ मैं लड़ता रहा, मैंने पदयात्रा भी की, मैं रोड से यात्रा भी की, मैं ऋषिकेश से लेकर दिल्ली कास्टिज्म के खिलाफ खूब गांव-गांव घूमा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज। लेकिन जब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती। तब कोई दिक्कत नहीं होती जब हम पसमानदाओं की बात ही नहीं करते। तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होती जब हम अर्जलों को, जो अर्जल है, उनको अशरफ से नीचे रखते हैं। सैयद ऊपर हो गए, शेख वो ऊपर हो गए। वहां भी मैरिजेस आपस में नहीं होती। अर्जन के लिए तो बर्तन भी अलग होते हैं, हुक्का भी अलग होता है उन्हीं के घरों में। वो हमसे कंप्लेंट करते हैं कास्टिज्म की, तो सबका ही चेहरा दिखाइए ना फिर तो कास्ट का। फिर सीरियन क्रिश्चियंस को भी दिखाइए, वो किसी और क्रिश्चियन के साथ मैरिज नहीं करते, उनके कब्रिस्तान अलग होते हैं, उनके कब्रिस्तान में अब बताओ मुर्दे से भी बैर है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो, अगर आप वास्तव में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो ये कहते हैं, हालांकि मैं मानता नहीं हूं, कह रहा हूं, चलिए मान लिया है भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो ह्यूमन के लिए तो कम से कम व्यवहार में इक्वालिटी होनी चाहिए। जिस इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी के लिए आप पूरी दुनिया में दंगा करते फिरे, और वही नहीं है आपके अंदर। तो यही लोग दरअसल एक माया जाल रचते हैं और एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। बीच में यदि हम उनको रखते हैं तो उसका एक सिस्टम बनता है मीडिया, दूसरा सिस्टम बनता है फिल्म्स, जिसको भूल नहीं सकते हम, और उसमें तीसरा सिस्टम ये बनाते हैं, कुछ लोगों को सेलिब्रिटी बनाते हैं, फिर वो आके हमें समझाते हैं। लगे हाथ एक ऐसी सेलिब्रिटी को मैं शादी की बधाई भी दे देता हूं।
सब जानते हैं। सापा में चली गई पत्नी बन के भाईजान के साथ। तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब खामखा पाकिस्तान में जाकर एक भारत के विरोध में वो बयान देते हैं जो भारत में हुआ ही नहीं। जो कश्मीर में हुआ उस पर क्यों नहीं बोलते? मैडम भास्कर की बात कर रहा हूं और ओपनली कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो सडनली निकल के आते हैं, जिसमें एक का जिक्र वकील साहब ने बहुत अच्छे से कहा भी कि उनको भारत में रहने से डर लगता है, लेकिन रहते भारत में ही है क्योंकि फिल्में यही उनकी देखते हैं। बाहर तो एक फ्लैट ना खरीद पाए, यहाँ तो फूल बिछा देते हैं रास्ते में लोग उनके, और वही भारतीय बिछाते हैं जिनसे उन्हें डर लगता है। फिर एनजीओज, ये बहुत बड़ा नेटवर्क था जो इस गवर्नमेंट के आने के बाद इसकी नाल कसी गई। और जब ये नाल कसी गई तो उसके बाद छटपटाहट शुरू हुई। बाहर से पैसा आना कम हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम हो गया। इसने कमर तोड़ दी टेररिज्म की भी। फिर एक इनके सिस्टम में, इनकी स्ट्रेटेजी में आती है यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनिस्ट और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक जगह आती है जुडिशरी, जिसका वर्णन हो चुका है। देखिए, कहते हम लोग रहे कि बच्चों को पढ़ाना समझाना है, बच्चों को आश्रमों में गुरुकुल में लाना है, और इन्हीं से राष्ट्र का निर्माण होता है। करना उन्होंने शुरू किया, यद्यपि वो विध्वंसक थे। वो एजुकेशनिस्ट होकर इनके बीच में गए और कहा कि भारत में कोई फिलोसफर हो ही नहीं, और एक हुआ भी है तो उसने लड़ना मरना सिखाया है, चाणक्य। कौन पढ़े फिर? हीगल पढ़ो, कांट पढ़ो, अगस्तीन पढ़ो, और कुछ कमी रह जाए तो सबके अब्बा मार्क्स, उनको पढ़ो। मार्क्स के जो इम्प्रिंट्स रूस में थे, लेनिन और स्टालिन, रोजा लग्जमबर्ग, इन सब को पढ़ो। और बाकी जो कांड कर रहे हैं माओ भाई, वो तो कर ही रहे, उनका वो तो लेफ्ट भी नहीं है। लेकिन आप माओइज्म भारत के अंदर आपने देखा, नक्सलवादी में शुरू होकर कहां तक फैलता चला गया, और उसने कितने लोग मारे, जिसका अभी बहुत अच्छा आंकड़ा भी दिया। उसकी बात ही नहीं कोई करता। ये इनका पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसमें सेंध लगनी जरूरी है। सरकार अपनी तरह से काम कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको काउंटर आइडियोलॉजी अगर कोई करनी है तो आपको आइडियोलॉग अपने से बनना पड़ेगा। अपनी आइडियोलॉजी आपको सामने लानी पड़ेगी, और वो भी फैक्चुअल ग्राउंड्स पर। क्योंकि जब ये कहते हैं कि इक्वालिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, तो यूथ फैसिनेट हो जाता है, और थोड़े दिनों बाद जब तक उसे अकल आती है कि ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तब तक वो नक्सल बन चुका होता है। और उसके बाद उसके नाम की एक गोली बनी हुई होती है कहीं, क्योंकि उसने इतना नुकसान कर दिया होगा। मैं वैसे ही जा रहा था तो उसने इतना नुकसान कर दिया था। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो इस किताब के माध्यम से हमें समझ में आएंगी। इसलिए ये किताब मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि पढ़नी भी चाहिए, और ये बहुत महंगी नहीं है, इसे आप गिफ्ट कर दिए, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट तो हम वैसे ही देते रहते, तो हमें इसे गिफ्ट करना चाहिए। ये एटलीस्ट केस स्टडी के साथ साथ कुछ लोगों को ग्राउंड देगी सोचने के लिए कि भारत में चल क्या रहा है। और जब यंग ब्रेन्स, इग्नाइटेड माइंड्स ये सोचने लगते हैं कि चल क्या रहा है, तो फिर ये भी सोचते हैं वो कि क्या नहीं चलना चाहिए और क्या चलना चाहिए। वहीं से हमारी विक्ट्री की यात्रा, विजय की यात्रा शुरू।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लालसर पब्लिकेशन से भाई जी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी को। और आप फिर एक पुस्तक लिखें, और मैं तो बल्कि वीरेंद्र जी से भी कहूँगा कि आपको भी लिखना चाहिए। और सहयोग रहेगा, मनी साहब का आपको सहयोग भी रहेगा। 110%। और जो है विष्णु जी और श्री हरि जी का भी आपको सहयोग रहेगा। हम सब उसे एक तरीके से सहयोग कर सकते हैं कि उसको सुनेंगे कि आपने क्या लिखा है, और उसे बांटेंगे भी खुद। धन्यवाद। जय हिंद। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन सारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स, आप सब यहाँ पे आए, मेरे सीनियर्स, मेरे भाई बहन। ये जो अभी मणि जी ने इंट्रोडक्शन दिया, रियल हीरो, ये सारी चीजें, एक्चुअली मैं मानता हूँ कि इन सारी चीजों की जो प्रेरणा है, जो उसके रियल हीरो हैं, वो ईश्वर हैं, मेरे गुरुदेव हैं, और उसके बाद कोई है तो मेरे पिताजी हरिशंकर जैन हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें की, जिनके मार्गदर्शन में सारी चीजें चल रही हैं। मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब अगर इस टॉपिक पे आते हैं, ये जो किताब माननीय अमित जी ने लिखी है, तो जब मैंने ये किताब पढ़ी थी और इसका अध्ययन किया था, तो मैं ऐसा मानता हूँ ये किताब अमित जी ने बहुत ही वेल रिसर्च डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इसको हम सबके सामने रखा है। और माननीय वीरेंद्र जी ने तो इस किताब को जिया है, इसके हर एक घटना को पिछले 8 साल से, इसके दंश को वो झेलते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पे माननीय अमित जी ने हाईलाइट किया, कितनी शॉकिंग चीज है कि एक पिस्टल, एक बंदूक जो मर्डर ऑफ वेपन बताई जाती है, एक हमारे हिंदूनिस्ट एडवोकेट हैं, एडवोकेट संजीव पुनालेकर, उनको गलत ढंग से अरेस्ट किया जाता है। और ये सारे एडवोकेट कम्युनिटी की लिबर्टी के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न यहां तक जाता है कि अगर कोई वकील कोई केस डिफेंड कर रहा है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी कभी भी खत्म हो सकती है। ये किताब, ये पूरा केस उसका जीता जागता उदाहरण है। घटनाक्रम ऐसे है कि एक क्लाइंट अपने वकील को बताता है कि उसने मर्डर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिसमेंटल करके फेंक दिया है क्रीक में। 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं उस क्रीक से, उस नदी से मर्डर वेपन को रिकवर करने के लिए। और जो डिसमेंटल करके बंदूक फेंकी गई थी वो वापस साबुत बंदूक बन के चली आती है। कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं है कि इसी बंदूक से मर्डर हुआ। जब पूछा गया कि क्या इसी बंदूक से मर्डर हुआ है, तो बोला गया कि ये बंदूक अभी स्कॉटलैंड यार्ड भेजी जाएगी। मतलब ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, ये रियल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में स्टोरी चल रही है। बोला जाता है कि इस बंदूक की स्कॉटलैंड यार्ड भेजी जाएगी, वहां पे इसकी जांच होगी। आज तक उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड से इंडिया की कोई ट्रीटी नहीं है। तो ये सारे इंसिडेंट्स, और साथ ही साथ जो एडवोकेट उनको डिफेंड कर रहे थे, उनको करीब 60 दिन से ऊपर जेल में रहना पड़ा, एडवोकेट संजीव पुनालेकर को। तो कितना मतलब, एक आपने क्लाइंट के स्टेटमेंट में वकील को ही अरेस्ट कर लिया जो उस केस को लड़ रहा था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो किताब है, ये कोई किताब, ये जितने लोग यहाँ इस केस में पकड़े गए हैं, जो इस समय जेल में इसकी एज अंडर ट्रायल इसकी ये पूरा इसका मतलब पूरा दंश झेल रहे हैं, ये सिर्फ इन लोगों के लिए घटना नहीं है। ये उन सबके साथ हो सकता है जो इस समय हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। ये उन सबके साथ हो सकता है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे किसी भी फील्ड में अगर आप इस आइडियोलॉजी के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको इस तरह से रोप इन किया जा सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी विचारधारा को दबाया जा सकता है। जहां तक सनातन संस्था की बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मैं 2013 से सनातन संस्था से एसोसिएटेड हूं, वहां बराबर जाता रहता हूं हर एक अधिवेशन में, मैं और मेरे पिताजी। और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जो भी हैं कि जब भी आप लोग को मौका लगे तो आप वहां पे आश्रम विजिट करें। और जिस तरह का आध्यात्मिक वातावरण और प्योरली साइंटिफिक वातावरण
हमारे गुरुदेव ने वहां पे स्थापित किया है, और उस सबका आध्यात्मिक लाभ जो सारे साधकों को मिलता है, जिससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और साथ ही साथ जीवन का जो मार्गदर्शन है वो भी मिलता है, उस तरह के केंद्र को आपने कलंकित करने का काम किया यहाँ की एजेंसीज ने। और मैं इसीलिए अपनी बात को ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए ये बोलना चाहता हूं कि ये जो घटनाक्रम है, हमें, आपने सारी समस्या समझ ली है, सारा विषय आपके सामने है। आज हम सबको अपने आप से सवाल पूछना है कि तावड़े जी बाहर कब आएंगे। हम और आप क्या कर सकते हैं आज इस मीटिंग से निकलने के बाद, इस चीज को हमें तय करना है। चाहे, मुझे पुष्पेंद्र जी की बात हमेशा बहुत याद आती है। वो एक बात बोलते हैं कि जो चीख सकता है वो चीखे, जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए, और जो कुछ नहीं कर सकता है वो इन लोगों के पीछे आके खड़ा हो जाए। तो कम से कम ये जितने लोग आज निर्दोष जेल में बंद हैं, जिनको बेल नहीं मिल रही है, जिनके साथ गलत किया जा रहा है, इसको हर आदमी अपनी लड़ाई समझ के अपने अपने माध्यम से लड़े, अपनी बात लोगों के सामने रखे, इसके बारे में बात करे, और इसके लिए सारे फैक्ट्स आपको इस बुक में मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग निर्दोष हैं, एक्शन टेकिंग बात भी हमें करनी है कि उनको कैसे आगे निकाला जाए, उसके ऊपर भी हमारा एंडेवर रहना चाहिए। क्योंकि हमें पता है ट्रायल पिछले 2015 से लेके 2023 तक 8 साल हो गए ट्रायल चल रहा है, पूरा शैम इन्वेस्टिगेशन है, रूइंड इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया कि ना कोई विटनेस है, ना मर्डर वेपन है, फोर्स्ड स्टेटमेंट्स हैं 161 के, जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। तो इन सारी चीजें में आपको ये सवाल पूछना चाहिए कोर्ट से और जुडिशरी से आके कि भाई आपने कैसे इनको बिना बेल के जेल के अंदर रखा हुआ है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि बेल इज द जनरल रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यहां पे तो उल्टा हो रहा है, जेल को आपने रूल बना दिया और बेल को एक्सेप्शन कर दिया। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस चीज पे हमें सबको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जो लोग सनातन संस्था पे, हिंदू जनजागृति समिति पे और उनके कार्यकर्ताओं पे, उनके साधकों पे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, उन्हें कभी जीवन में एक बार जाके सनातन संस्था को जाके देखना चाहिए कि उनका हिंदू दर्शन है क्या। तब मुझे लगता है कि आप पूरी बात समझ पाएंगे। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी अवेकनिंग जो आ रही है, मैं डॉक्टर साहब से बात कह रहा था कि हम लोग जब पहले बोलते थे इन चीजों को तो कुछ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सुन लेंगे, कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट सुन लेंगे। आज एक डॉक्टर अगर ऐसे आगे बढ़ करके और इस तरीके के इश्यूज पे एक पुस्तक लिख रहे हैं तो आई सैल्यूट यू डॉक्टर साहब। आज जो अवेकनिंग क्रिएट हुई है कि हमारे आईटी के लोग, जो कभी साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जो कभी इन चीजों में ध्यान नहीं देते थे, आज वो उठ करके खड़ा हुआ और वो एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है इस देश के अंदर। तीसरी बात मैं कहूंगा डॉक्टर साहब, ये रैशनलिस्ट वर्ड छोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके रैशनलिज्म के एक दो नमूने मैं आपको दे देता हूं। जब द्वारका की एक्सकवेशन शुरू हुई अंडर वाटर, तो सारे लेफ्टिस्टों ने हल्ला मचा दिया, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस से रेजोल्यूशन तक पास किए कि द्वारका इज ए मिथ, दिस इज ए वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। और वही ये रैशनलिस्ट, जब हमारे एक मौनी बाबा प्रधानमंत्री ने यूपी में एक साधु बाबा के सपने के ऊपर एक खजाना खुदवाना शुरू कर दिया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी बुला लिया था, जियोलॉजिकल सर्वे भी बुला लिया था, तब इनका रैशनलिज्म कहां चला गया था ये मेरी समझ में नहीं आता। ये शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये आज भी उसी कारण से इस्तेमाल होते हैं जो 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने इस्तेमाल करनी शुरू कि वो जानते थे कि यहाँ दो सभ्यताओं का झगड़ा है, यहाँ वो कई जंगली लोगों को नहीं वो राज करने आए हैं। और जब तक जो भारत की सनातन की सभ्यता है, जो विज्ञान है, जो स्थापत्य कला है, कोई भी चीज जो भारत की है, जब तक उसका वो सत्यानाश नहीं करेंगे तब तक वो इस देश पे राज नहीं कर पाएंगे। और उसको कार्ल मार्क्स बाबा ने पकड़ दिया फिर, इंडिया इज नो हिस्ट्री, इट्स हिस्ट्री इज ओनली दैट ऑफ इन्वेजन्स, जो आज ये बोलते हैं। और देखिए, लेफ्ट को एक्सपोज करने के लिए तीन चीजें आज बहुत है, मैं चौथी चीज की बात नहीं करूंगा, जो आम भाषा में हर आदमी समझेगा। पहली चीज इन्हें ये बता दीजिए कि लेफ्ट के अंदर राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है। और ये वो आदमी आपके सामने कह रहा है जो 21 साल सीपीएम में कार्ड होल्डर रह के रहा है 1996।
क्योंकि मैं राष्ट्रवाद पे लड़ता था, मेरे मुंह से माइक छीने हैं इरफान हबीब ने और विपिन चंद्रा ने। राष्ट्रवाद इनके लिए एक बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, और ये आज हिंदुस्तान की, हमारे संविधान की जो ये बात करते हैं, या स्वतंत्रताओं की ये बात करते हैं, ये सिर्फ उनका उपभोग करते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ना कि उनका भारत के संविधान में विश्वास। दूसरी बात इनको ये समझाइए कि लेफ्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है। बड़ी ये लोग ह्यूमन राइट्स, प्रजातंत्र, दुनिया भर का हल्ला मचाते हैं। हर लेफ्टिस्ट को पार्टी में ज्वाइन करते ही एक चीज जो पढ़ाई जाती है और जो इनके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, टू एस्टैब्लिश द प्रोलिटेरियन, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। डेमोक्रेसी ऑफ द प्रोलिटेरियट भी कहते हैं तो मैं मान लेता, लेकिन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट जो अपने डॉक्यूमेंट में लिख करके बढ़ाते हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि वो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। और तीसरा जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको हमेशा एक विदेशी वैसाखी चाहिए। एक जमाने में सोवियत यूनियन की चाहिए होती थी, फिर चर्चिल की वैसाखी पकड़ी इन्होंने। उस चर्चिल की वैसाखी पकड़ी जिसने लाखों लोगों का कत्ल मैन मेड फेमिन से बंगाल में कराया, और आईएनए को इन्होंने अपोज किया कि साहब वो हिटलर और जर्मनी और इटली से मिल गए। भैया ये बताइए, जापान और जर्मनी ने हिंदुस्तान का कौन सा नुकसान किया था, कब किया था? बल्कि हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल को, रेवोल्यूशनरीज को हमेशा सपोर्ट किया था। लेकिन इनके लिए चर्चिल जो है बहुत बड़ा बाप था इनका। फिर पीसी जोशी साहब बंबई में अपने दफ्तर के ऊपर जो झंडा लगाते थे, उसमें सोवियत यूनियन का झंडा होता था, उसके बाद सीपीआई का झंडा होता था, नीचे मुस्लिम लीग का झंडा होता था। वैसे ये लोग सिकुलर है। इनके लिए जो सिकुलर मतलब दो शब्द जो मायने हैं सिकुलरिज्म के इस देश के अंदर, कि यूरोप में उसका मतलब कुछ और होगा, हिंदुस्तान में कुछ और होगा, पूरे उसके अंदर। तो और जिनका, देखिए मेरा आज ये मानना है कि आज अगर हम, हमारा संविधान, हमारा प्रजातंत्र, हमारे अधिकार अगर ये बचे हुए हैं इस देश के अंदर, तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से बचे हुए हैं, जो व्यक्ति 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर बंदूक लेकर के हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे देश की स्वतंत्रता। और ये जो आजादी आजादी करते हैं, ये टुकड़े गैंग के 50 लोगों के नारे लगाने से नहीं बची होगी। जिस समय मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था एकेडमिक टेररिज्म, शायद पहला व्यक्ति था जिसने टीवी डिबेट्स में इसको इस्तेमाल किया था, तो लोग हंस दिए थे मेरे ऊपर, ये कहां से तुमने वर्ड कॉइन कर लिया भाई। और आज टेररिज्म के जो रूप हैं, आज मेडिकल टेररिज्म मौजूद है। आपने श्रीलंका में देखा कि वो डॉक्टर कैसे महिलाओं के ऑपरेशन कर देता था दूसरे धर्म की आने वालों के। आज मीडिया टेररिज्म मौजूद है, प्रेस टेररिज्म मौजूद है। मुझे एक एस्पेक्ट हमारी लाइफ का दिखा दीजिए, खाने से लेकर और सब्जी बेचने से लेकर के और ऊपर तक, जिसमें के टेररिज्म का एस्पेक्ट मौजूद नहीं है पूरे उसके ऊपर। कुछ हमको अपने सिद्धांत बदलने होंगे। मेरी माता जी का चौथा था, पंडित जी ने बहुत उनका गुणगान किया और ये कहा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, दोबारा पृथ्वी पे ना आए। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा पंडित जी इस सिद्धांत को बदल दीजिए। जितनी अच्छी आत्माएं हैं उनको तो आप ऊपर भेज देते हैं, और जितने गुंडे बदमाश हैं वो वापस आ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि धरती के ऊपर जो है कलंक आ गया और धरती में कलयुग आ गया। मैं तो चाहूंगा कि मेरी मां बार बार नीचे आए और हमको पैदा करे। दूसरा भाई साहब, ये बहुत हो गया। ओम शांति शांति, वासुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभवे। हमने ये दुनिया को उस समय दिया जब ये सभ्यताएं दुनिया में पैदा भी नहीं हुई थी। बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें क्या मिला? हमारे यहां तो लोगों ने अतिथि देवो भव को भी आक्रांता देवो भव में बदल दिया था। आज वो समय नहीं। आज अगर आप लोग ये समझते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने से और चढ़ावा देने से सनातन बच जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहिए।
अगर इस गलतफहमी में रहेंगे तो 5 साल 6 साल लगेंगे हरा झंडा लगने पे राष्ट्रपति भवन, ज्यादा देर नहीं। जो मणिपुर में हो रहा है, क्यों शालीन बाग को चुना गया था, ये इनके सब एक्सपेरिमेंटल लैब्स चल रहे हैं। मैंने 2013 में एक बात कही थी, उस समय तो ये रोहिंग्या नहीं आए थे। मैंने कहा था दिल्ली को चारों तरफ से बांग्लादेशी ने घेर रखा है, हो सकता है बहुत से इनमें गरीब है, आए हो, वो सब है, लेकिन अगर हर मोहल्ले में 2-2 भी टेररिस्ट हुए उसमें से, और एक दिन AK-47 लेके दिल्ली में 6 तरफ से निकल गए, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, उन्हें बाद में मार लेंगे, लेकिन उससे पहले वो क्या कर लेंगे? लेकिन हमारे लोगों को मुफ्त की बिजली चाहिए, हमारे लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है, हमारे को बस का टिकट मुफ्त में चाहिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारा अस्तित्व। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि 44 साल तक मैंने इतिहास पढ़ाया और जिन कारणों को मैं बताता था कि जिन कारणों से हम गुलाम होते चले गए, कि कभी अपने जीवन में उन कारणों को दोबारा उभरते हुए देखूंगा। जैसे वो छोटा राजा करता था ना, अरे आ रहा है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी आ रहा है, ठीक है, उसको पीट के जा रहा है, मेरे पे क्या असर पड़ता है? मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, देश जाए भारत के अंदर। जातिगत करना, हर सोशल रिफॉर्मर ने कहा कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हम लोगों ने पिटीशन डाली उस पर, हाई कोर्ट से हमें उसमें स्टे मिला। इतने बड़े बड़े पोस्टर सारे बिहार में लगा दिए गए हमारी फोटो डाल करके कि ये संघी हैं। तो मैंने पूछा, भाई जो जातिवाद करते थे उनको तुम कहते थे वनुवादी और संघी हैं, और हम जातिवाद का विरोध कर रहे हैं तो हम भी संघी हैं। तो पहले तय कर लो संघी कौन है। कि जो अंग्रेजों ने हमारी, जिसे मैं कहूंगा जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कम्युनिटीज थी, बढ़ई, लोहार, माली, तेली, रातों रात उनको लो कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया बांटने के लिए, और आज आप फिर उसी मानसिकता से चलते हैं। बहुत बातें कहनी होगी, एक लास्ट बात कहूंगा, हमको माई लॉर्ड्स नहीं चाहिए। और ये वाले तो नहीं, माई लॉर्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। माई लॉर्डशिप, मुझे शर्म आती है जब वकील हमारे खड़े होकर के कहते हैं माई लॉर्डशिप। क्या लॉर्ड है तू? तू एक पेड एम्प्लॉय है कोर्ट के अंदर, एक काम तुझे दिया गया है जजमेंट करने का, तू लॉर्ड किसका हो गया? और जो इन लॉर्ड की हालात है उसको देख के तो आज प्रेमचंद को भी शर्म आ जाएगी, वो पंच परमेश्वर जैसी कहानी नहीं लिखेगा। अब तो कहानी लिखने का टाइम आ गया है, माई लॉर्डशिप की कहानी लिखी जाए कि 20-22 वही परिवार है, उन्हीं के जज बनते हैं, उन्हीं के वो ऊपर आते हैं। अभी आ रही है एक किताब आपके सामने, हमारे एक साथी है प्रोफेसर मक्खन लाल, उन्होंने 4 आर्टिकल लिखे थे इनको एक्सपोज करते हुए। तो उनको फोन आता है, माफी मांग लो नहीं तो तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। उसने कहा भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूं, और मैं तो ये डिमांड करूंगा कि मेरा जो केस चलाया जाए वो कहीं स्टेडियम में चलाया जाए, सारी पब्लिक के बीच में, और सुना जाए मेरे। एक हफ्ते बाद फोन आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्ट अगेंस्ट यू। ने कहा तुमने तो मेरा सारा खेल खराब कर। जब मैं पूछता वहां पे कि फलाने चंद्राचूड़ कहां से आए, और ये किसके बेटे थे, और वो किसके बेटे थे, और वो किसके बेटे थे, जो आपने बहुत अच्छी बात कही अभी किसी ने, हमारे वक्ताओं ने, कि अगर आप वकील हैं तो वकील हैं, लेकिन अगर आप राजनीतिक लीडर है और फिर आके आप वकालत करते हैं तो आप दलाल है, फिक्सर भी नहीं है, दलाल है। आप दलाल हैं पूरे उसके ऊपर। इस जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, बिल्कुल। और जब तक हम इसे मैं तो रोज लिखता हूं, बुलाए मुझे, करे मेरे पे कॉन्टेम्प्ट, मैं तो खुद बेल पे हूं भाई डिफेमेशन केस में। जिस तरीके का झूठा मुकदमा बना के मुझ पे डाल रखा है क्रिमिनल डिफेमेशन केस, 501 में बेल पे हूं, और इन्हीं लोगों का डाला हुआ है। जब मैंने एक्सपोज किया तो 10 साल पहले, चल रहा है मुकदमा, रोज डेट लगती है। मैं तो नहीं घबराता, तो क्यों आम आदमी आज घबराता है इन लोगों से कि ये कॉन्टेम्प्ट कर देंगे? अरे क्या कर दोगे कॉन्टेम्प्ट करके? त्योहार ही भेजोगे ना, हम जैसों को भेज दोगे तुम त्योहार। राहुल गांधी जैसों को नहीं भेज सकते जिन्होंने नेशनल हेराल्ड के अंदर गबन किया है, उनके लिए सारी बेल मौजूद है। लेकिन जो झूठे लोग फंसा के रखे हुए हैं, इनके तो मुकदमे की डेट भी 6 महीने बाद लग गई। अभी मैंने किया ये जो टाइम्स नाउ न भारत की बच्ची के साथ किया इन्होंने, पंजाब के अंदर भावना के साथ में मैंने कहा अगर
उस सेशन जज ने निर्णय दिया और ये धाराएं मानी, और एचसी बाद में कह रहा है कि नहीं ये धाराएं गलत हैं, तो क्यों नहीं सेशन जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता? मैं अगर प्रोफेसर हूं, आप आर्मी में हैं, किसी सर्विस में है, अगर आप कोई गलत काम अपनी सर्विस में करते हैं तो आप पे तुरंत सस्पेंशन होता है, आप पे इंक्वायरी होती है, आप पे एक्शन होता है। लेकिन ये बाई लॉर्ड कहां के बने हुए हैं जो इन पे कोई एक्शन नहीं हो सकता किसी भी काम के लिए? और फिर ये कैसा लॉ है, ये क्या इंटरप्रिटेशन है? और इसलिए भाई साहब, अब वो बदलिए पूजा पाठ को, शांति मित्र के लिए शांति और दुश्मन के लिए क्रांति, ये करना होगा। आखिरी बात कहूंगा, आज वो समय आ गया है। पहले तो गांधी जी के 3 बंदर कहते थे ना, 3 बंदर है, सुनना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं। आज कई बंदर हो गए, लिखना भी नहीं, इस पे फिल्म भी नहीं बनानी, बस इस बारे में पढ़ना भी नहीं, बहुत सारे बंदर हो गए। और अब वो समय नहीं है कि हम इंतजार करें कि कोई हम पे चाटा मारे तो हम दूसरा गाला आगे करते। इस गांधीवाद को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, इस देश का सत्यानाश होगा। वो भी समय नहीं है कि कोई चाटा मारेगा, अच्छा तब हम उसको मारे। आज समय यह आ गया है कि एक प्रण ले लीजिए कि हम इतने मजबूत होंगे कि अगर कोई हाथ हमारी तरफ उठने की कोशिश भी करेगा तो उस कोशिश से पहले उसे काट के डाल देंगे। This book is an effort of a common man. We are just common, ordinary people who got interested in a topic. It's not me, it's him completely. But ये एक effort है और ये एक काफी bold step है, which does compromise a lot of things in our personal lives also. But yes, that just gives all of us a hope कि हम चाहें तो हम थोड़ा कुछ nation building के लिए contribute कर सकते हैं. And I would like to thank our publishers, the organizers, and the media for covering us. Thank you very much.